Good morning, everybody. We will be starting in the next 1 minute. Good morning, Ishi. Morning. Happy Amrit Vela. Good morning, Happy Amrit sir. Vela to all. Good Good morning, morning. everybody. We will Good be morning, starting in the sir. next one Good Good minute. morning, morning. sir. Good Good morning. morning, sir. Good morning, sir. Good Good morning, morning. sir. Good Good morning, morning. HG. Magical Good morning. morning. Good Happy morning, Amrit sir. Vela. Good morning, sir. Happy Ishi. Sunday. Happy Good Amritvela, morning, Ishi. sir. Good morning, Ishi. Good morning. Good Hari Om, morning. Hari Om, Very good Ishi. morning, everybody. Good Good morning, morning. sir. Good Good morning. Good morning, sir. morning. Good Good morning, morning. sir. Good A very morning. good morning, everybody. A Thank very you good all morning. for A very Good joining. happy morning, morning to Happy everyone. everyone. Amrit. Happy A very morning, happy divine Amrit morning, Vela. beautiful morning. Thank Thank you, thank you. you, thank Thank you. you. Good Thank morning, Good sir. morning, Ishi. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. A very good morning. A very happy morning to everyone. Happy morning, divine morning, beautiful morning. Thank you, thank you, thank you. Thank you all for joining in. I still need to learn how to do the YouTube live, so thank you for, just having patience. And good morning. Very, very, very happy Amrit Vela. Thank you. Thank you. Thank you for joining in this beautiful Millionaire Magic Book session. Thank you. Let's start this beautiful day by saying gratitude for ourselves. I will say for myself, I will say my name. आपको अपना नाम लेना है. You can fold your hands, you can keep your hands on your heart, and let's start this session. So thank you, thank you, Ish, for waking up this early and doing Count Your Blessings. Thank you, Ish, for doing the magic rock practice before sleeping. Thank you, Ish, for finding lots of things to be grateful for and fulfilling your life, filling your life with lots and lots of opportunities to be grateful. अपनी जिंदगी में इतनी सारी चीजें ढूंढना, शुक्रगुजार होने के लिए थैंक यू. So thank you for setting this intention for this session. Thank you for making your life magical. Thank you, thank you, thank you. Good morning, good morning, good morning. Thank you, everybody. Yes. So wow, we have reached till day 8 of the magic book. अब हम day 8 पे आ गए, which is called the magical ingredient. First, I would like to know people who want to share कि कल के चैप्टर में मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी में डिड दे फाइंड एनीथिंग, उनको प्रैक्टिस में कुछ नया मिला, मे बी सम स्मॉल थिंग दैट वाज की बीइंग अ पेन पॉइंट इन लाइफ. आपकी लाइफ में कोई छोटा सा पेन पॉइंट था बट आपने कभी ध्यान नहीं दिया था, बट कल जब वो प्रैक्टिस की उसके ऊपर फोकस ली, सो समथिंग शिफ्टेड. तो प्लीज शेयर. यू कैन रेज योर हैंड एंड आई विल अनम्यूट यू कि आपने अपनी लाइफ में कल कौन से टॉपिक पर प्रैक्टिस किया, या आपको क्या लर्निंग मिली इस टॉपिक से. यू कैन शेयर. या आपको कैसा फील हुआ, बिकॉज देयर वाज अ टॉपिक कि आप हो सकता है कि आपने उस टॉपिक बड़ा भी नहीं था, बहुत छोटी सी चीज हो सकती है, बट यू ऑलवेज थॉट कि बिकॉज ऑफ दैट टॉपिक आपके अंदर कुछ 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 कहते हैं ना हेवीनेस थी. एंड नाउ आफ्टर डूइंग दैट प्रैक्टिस you were able to be grateful, you were able to be light, be free. You can share what are the good things. आप कोई भी इफ यू जरूरी नहीं आपने अपना वो ब्रेक डाउन शेयर करना है, आपने सिर्फ ये शेयर करना है कि मैंने ये 2 3 4 5 ब्लेसिंग लिखी. इफ एनीवन वांट्स टू शेयर दे कैन शेयर. यस नीलिमा जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. एंड आई वुड आल्सो आस्क पार्टिसिपेंट जो शेयरिंग करेंगे टू ट्राई टू कीप द वीडियो ऑन. यस. हाँ, मेरा हेल्थ चैलेंज था, बट I wrote that I'm truly grateful that I could take rest from my hectic job. I'm truly grateful that I'm able to exercise and go to yoga class. I'm truly grateful that I learned to write gratitude and I'm able to attend the book reading sessions.
I'm truly grateful that I cared for my health and I lost weight. I lost 14 kg weight. I'm truly grateful that I learned to cook healthy and eat healthy, and I took care of my family health also indirectly. I'm truly grateful that I'm able to run 5K marathons. Wow. I'm truly grateful that I have time to attend bhajans. Or I'm truly grateful that I could find time to make snacks for my children and be there for my children when they return from school. So wonderful. I'm truly grateful that I had dedicated time to focus on my health. I'm truly grateful that I have time to focus on learning or attending farming related courses because I've taken time to rest. तो मुझे time मिलता है, मुझे farming बहुत पसंद है, तो I could go to lot of land designing courses and other things. The story is that whatever happened to me is good for me. एंड मुझे बहुत सारे डिफरेंट चीजें करने के लिए टाइम है और आई एम फोकसिंग ऑन माय हेल्थ आई लॉस्ट 14 kg weight आई एम ईटिंग हेल्थी एंड या Wow. the So the well. breakdown helped me in that way. Yes. Wonderful. So beautiful. Thank you. Thank you so much for your sharing, Nilima ji. And it is a wonderful sharing because it is a perfect example कि आपकी लाइफ में अगर कोई भी ब्रेकडाउन भी आता है, उससे कितना कुछ है। आपने हेल्दी सीखा, हेल्दी खाना बनाना सीखा, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना सीखा। यू नो यू स्टार्टेड ईटिंग हेल्दी, यू स्टार्टेड लुकिंग हेल्दी, यू स्टार्टेड फीलिंग हेल्दी जस्ट बिकॉज वन ब्रेकडाउन दैट वाज देयर। एंड जब हम Yeah. उस ब्रेकडाउन के लिए ग्रेटिट्यूड करते हैं तो ऑटोमेटिकली लाइफ भी बहुत कहते हैं गुड हो जाती है। एंड आई एम श्योर आप में से काफी सारे लोग भी ज्वाइन इन होते हैं। आप like in the sharing I have heard personally कि people say they joined the magic book because at that time उनकी लाइफ में कोई ब्रेकडाउन चल रहा था, be it कोई हेल्थ का, कोई रिलेशनशिप का, कोई फाइनेंशियल, could be anything, and because of that breakdown many years ago, 2 years ago, 3 years ago, उन्होंने मैजिक बुक की जर्नी स्टार्ट की उस ब्रेकडाउन को डील करने के लिए। एंड टिल नाउ आफ्टर 2 years, 3 years, दे आर स्टिल प्रैक्टिसिंग द मैजिक बुक एंड उनकी लाइफ अब बिल्कुल मैजिकल हो गई है। सो बिकॉज ऑफ दैट ब्रेकडाउन मैजिक बुक गॉट इंट्रोड्यूस टू देयर लाइफ एंड नाउ देयर लाइफ हैज बिकम मैजिकल। सो थैंक यू फॉर योर ब्यूटीफुल शेयरिंग। यस, थैंक यू। डिवाइन पावर। मैं कल जॉब के लिए मैंने शुक्राना लिखा था जैसे मैम ने बताया था, और जो वो नोट काउंटिंग वाली प्रैक्टिस में लगातार कर रही हूँ। तो उससे क्या हुआ कि कल मुझे 21,000 का बिजनेस मिला और एक क्लाइंट मुझे घर पे ही बैठा हुआ मिला। मेरा एक्चुअली न्यूमरोलॉजी तो हूँ मैं, तो उसी के लिए एक क्लाइंट मेरे पास अचानक से आया और कुछ मतलब कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पैसे आ रहे हैं, चाहे वो फंसे हुए आ रहे हैं चाहे कैसे भी आ रहे हैं। और जॉब का ग्रेटिट्यूड फील करके मतलब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने क्या गलतियाँ की थी या कुछ भी किसी भी वजह से, तो मैंने उनका ग्रेटिट्यूड किया, तो वहाँ से भी मुझे कॉल्स आ रहे हैं। वाओ, थैंक यू सो सो मच। वंडरफुल। थैंक यू फॉर योर ब्यूटीफुल शेयरिंग। अभी तो मैजिक आने स्टार्ट, आपने मैजिक पहले की हुई है? मैं ये फोर्थ टाइम, मतलब ये मेरा चौथा बार है मैजिक बुक में कर रही हूँ, और इसी से मेरी बुक जो लाइफ है बहुत चेंज हुई है। दीपक अधाना जो है भाई, वो उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया था एंड इट्स रियली अमेजिंग। आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। थैंक यू फॉर मेकिंग योर लाइफ थैंक यू। मैजिकल। थैंक थैंक यू। यू सो वंडरफुल। अभी तो मैजिक्स देखो स्टार्ट हुए हैं। आप इस बार तो आपको मिलियनर माइंडसेट में लेके जाएंगे एंड फिर आपकी लाइफ में कितने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ जादू लिखे हुए हैं। तो बी बी ग्रेटफुल एंड थैंक यू फॉर बीइंग ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू। तो देखो कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। Even if when life is giving you a breakdown, that is also an opportunity to be grateful for. And आपकी लाइफ में जैसे हमने अभी लास्ट के चैप्टर्स किए, काउंट योर ब्लेसिंग, मैजिक वॉक, then we have magical health, relationships, money, work life magic. And in all these practices, they were giving you opportunities to be grateful for.
आपकी लाइफ में कितनी अपॉर्चुनिटीज आई हैं। आज एक असाइनमेंट करते हैं, नोट टेक आउट योर कॉपी एंड पेन एंड लेट्स राइट कि हमारी लाइफ में कितनी कितनी अपॉर्चुनिटीज आई हैं दैट रिमाइंड्स अस टू बी ग्रेटफुल। हम पहले करेंगे सिर्फ लास्ट डे का, फॉर द यस्टरडे, एक दिन का ढूंढेंगे, बट फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड, छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, यू हैव टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज टू बी ग्रेटफुल फॉर। एंड जस्ट यू नीड टू राइट डाउन द लिस्ट कि हाँ ये चीज थी, ये चीज थी, ये चीज थी। फॉर एग्जाम्पल, टुडे आई एम इन मुंबई विद एनी एंड वी आर हियर फॉर वेकेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले आई विल वेक अप एंड आई विल से थैंक यू फॉर द बेड, देन आई हैव थैंक यू फॉर द फैन, थैंक यू फॉर द एसी, बिकॉज यहाँ का टेम्परेचर दिल्ली के हिसाब से थोड़ा वार्मर है, तो वी थॉट कि हम थोड़े विंटर के क्लोथ्स ले लेते हैं। और थैंक यू फॉर द मॉल जहाँ से हम समर के कपड़े भी शॉप कर सकते हैं। देन वी हैव, when I get up, I say thank you for the blanket, because blanket is also an opportunity for me to be grateful for. Electricity, thank you for the electricity, because it is an opportunity for me to be grateful for. We have the hotel, we have the breakfast, food. Food is an opportunity. जब भी food को देखता हूँ, it is an opportunity that reminds me to be grateful for. Similarly, see in your life, आपकी लाइफ में और क्या क्या चीजें हैं? खाना, पानी, कपड़े, दोस्त, family members, then we have house, bed, towel, face wash, brush, toothpaste, so many things, right? जब नाम लिखते हो, make a list of at least 25 to 30 things कि अपनी लाइफ में लिखो, कल के दिन में आपने क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आई है आपकी लाइफ में, मोबाइल फोन, व्हाट्सएप, एंड इसको आई वुड से एक बार लिख लेना अपने हाथ से, सो दैट इट रजिस्टर्स इन योर माइंड। Ashwin मैम की क्लास, यस, the biggest reminder. Zoom call. What else? My luggage, TV. Then we have the washroom. Then we have a beautiful Uber. Uber से travel करने में बहुत easy हो जाता है हमारे लिए. Then we went for a concert yesterday. तो that Coldplay का concert था यहाँ बॉम्बे में, तो we went there. And that was an opportunity. Somebody gifted us the tickets, so they are the opportunity for us to be grateful for. What else? Find out. चश्मा, yes. आप स्पा के लिए गए कल, दैट वाज एन अपॉर्चुनिटी, वंडरफुल। और टेम्पल, आप टेम्पल जाते हो रोज, वंडरफुल। एंड जब आप ढूंढते हो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज, जब हमने वर्क लाइक मैजिक में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज ढूंढी टू बी ग्रेटफुल फॉर, सिर्फ एक वर्ड निकलता है हिंदी में बड़ा अच्छा, कहते हैं जिंदगी का स्वाद आ गया, कि इतना कुछ है। And that is what today's chapter is also about. It is called a magical ingredient. कि आपकी लाइफ में there is one ingredient that will get you all the magics, कि हर आपकी लाइफ में एक स्वाद कैसे आता है, लाइफ में एक फ्लेवर कैसे आता है। इफ यू वांट कि आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके हेल्थ में एक फ्लेवर आ जाए अच्छा सा, तो हाउ विल यू डू दैट? पास्ट के आपने अपने फ्लेवर्स के शुक्राने करने सारे। And because magical ingredient says it is, the chapter is based on how you treat your food and water. So today we will make a list. आज हम एक लिस्ट बनाएंगे of all the magical things, all the magical and wonderful things as in food and water that we drank and ate in our lives. तो आज आपने पूरी एक लिस्ट बनानी है बचपन से लेके आज तक की। कौन कौन से खाने के आइटम आपको याद हैं जो आपने खाया है? कौन कौन सी मॉकटेल्स आपको याद है जो आपने पिए हैं? जूसेस आपको याद है आपने पिए हैं? एनी कॉकटेल, एनीथिंग जो आपके शरीर के अंदर गया है किसी वे में।
तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक। रोटी से स्टार्ट करते हैं। आपने कौन कौन से टाइप की रोटियां खाई हैं? आपने होम कुक खाई है, आपने बटर रोटी खाई है, आपने तंदूरी रोटी ट्राई की हुई है लाइफ में? तो राइट इट डाउन। तंदूरी रोटी, बटर रोटी, नान, गार्लिक नान, चिली चिली गार्लिक नान, लच्छा पराठा, मिर्ची पराठा, रुमाली रोटी, गार्लिक रुमाली रोटी, खमीरी रोटी, कुलचा, अमृतसरी कुलचा, चूर चूर नान, मिस्सी रोटी, एंड व्हाट एल्स? अभी तो सिर्फ रोटी के अंदर चपाती आती है, आलू पराठा, गोभी पराठा, मिर- बाजरा वाली रोटी, मक्की की रोटी। यस। अभी देखो रोटी में कितने सारे ऑप्शन हैं जो मैंने लाइफ में खाए हैं। पनीर पराठा, रागी की रोटी, वंडरफुल, चिली पराठा, मोरिंगा का पराठा। अभी इतने सारे नाम तो मैंने पढ़े भी नहीं है, बस थैंक यू, बट थैंक यू फॉर शेयरिंग। वाह, कितनी। हाँ, पूड़ी, आलू के साथ पूड़ी, भटूरा, अजवाइन का पराठा, नमक मिर्च वाला पराठा, ठेपला, दाल बाटी, वंडरफुल, मीठी पराठा, पिज्जा पराठा, वाह, मूली पराठा, प्याज का पराठा। वंडरफुल। लिखते हुए ना, आपने अपनी लिस्ट बनानी है कि ये मैंने खाया हुआ है, सो दैट यू नो व्हाट, हाउ फ्लेवरफुल लाइफ यू हैव बीन लिविंग। देन वी कम टू दाल्स। दाल कौन कौन सी खाई है आपने अपनी लाइफ में? दाल एंड सब्जी के अंदर आ जाएंगे दाल फ्राई, मूंग की दाल, काली दाल, येलो दाल, मिक्स दाल, दाल तड़का, सांबर दाल, दाल मखनी, दाल मेथी, तड़का दाल, रसम। वेरी गुड। और कौन सी दाल होती है? स्प्राउट्स होते हैं, राजमा होते हैं। वंडरफुल। पनीर, पनीर में कितनी वैरायटी खाई है लाइफ में? पालक पनीर, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, पनीर मखनी, पनीर टिक्का, कढ़ाई पनीर, एंड वाटर, मटर पनीर, पनीर दो प्याजा, बटर पनीर, पनीर भुर्जी, वंडरफुल, पनीर चिली, पुलाव पनीर, पनीर लबाबदार। कीप ऑन राइटिंग। एंड साथ साथ अगर आप बोलते बोलते थैंक यू भी बोल सकते हो तो दैट वुड बी अ प्लस पॉइंट, पर वो हम आगे जाके करेंगे दोबारा। पनीर टिक्का, वेरी गुड। नाउ कम टू स्नैक्स। आपने स्नैक्स में क्या क्या खाया हुआ है? आपने तंदूरी स्नैक्स के आइटम क्या क्या खाए? पहले तंदूरी स्नैक्स में आ जाओ। तंदूरी स्नैक्स में यू हैव तंदूरी ब्रोकली, तंदूरी मशरूम, तंदूरी पनीर, तंदूरी सोया। सुबह सुबह सबके मुंह में पानी आ गया, हाँ मेरे मुंह में तो आ गया। बट लेट्स कंटिन्यू, अच्छी बात है। नाउ यू स्टार्ट हैविंग द फ्लेवर। एक्सक्यूज मी। तंदूरी पोटैटो, गलौटी कबाब, वंडरफुल, तंदूरी पाइनएप्पल, एंड मलाई चाप, सोया चाप, अचारी चाप, अचारी पनीर टिक्का, मक्की के कबाब, तंदूरी मोमोज। तंदूरी चाय कौन सी होती है? तंदूरी भुट्टा। यस। हम बाबे नेशन गए थे, बाबे नेशन में कितनी सारी आइटम्स थी। सो मेनी आइटम्स। तंदूरी लीची, लीची, वाओ, वाओ। तंदूरी चाय मैंने नहीं खाई कभी, बट चलो, आज पड़ा तो अब आएगी यूनिवर्स जल्दी। व्हाट एल्स? तंदूर हो गया। नाउ वी हैव फ्राइड आइटम्स। आपने अपनी लाइफ में फ्राइड चीजें क्या क्या खाई हैं?
समोसाज होते हैं फ्राइड, देन पूड़ी होती है फ्राइड, कटलेट्स, कॉर्न कटलेट, वेट कटलेट्स, वंडरफुल। कचौड़ी होती है फ्राइड, कचौड़ी आलू खाए हैं। वड़ा पाव होता है फ्राइड, ब्रेड रोल होता है फ्राइड, टिक्की होती है फ्राइड, दैट आई हैव ईटन। स्प्रिंग रोल्स होते हैं, मोमोज होते हैं, चिप्स होते हैं, मंचूरियन, मंचूरियन फ्राइड होता है। हाँ हाँ, शैलो फ्राई होता है। देन पापड़ होता है। हम्म। दाल कचौड़ी, भटूरे होते हैं, यस। एंड ऑल्सो कीप राइटिंग डाउन, यू शुड नो कि मैंने कितना कुछ खाया है। 100 क्रॉस, 100 की लिस्ट क्रॉस हुई है अभी नहीं? आई एम होपिंग 100 की हो गई होगी लिस्ट। वेफर्स होते हैं, ब्रेड पकोड़ा होता है। ब्रेड पकोड़ा में कितनी वेराइटीज आती हैं? ब्रेड पकोड़ा, अनियन पकोड़ा, मिर्ची का पकोड़ा, सो मेनी, फ्रेंच फ्राइज, बेसन का पकोड़ा, यस। गोलगप्पे आर ऑल्सो फ्राइड, आई थिंक, या। नाउ कम टू दी अमेरिकन स्नैक्स जो आपकी लाइफ में अमेरिकन, जैसे हो गया आपका बर्गर्स हो गए। बर्गर्स कितने वैरायटी के खाए हैं आपने? वेज बर्गर, चिकन बर्गर, मटन बर्गर, फिश बर्गर, देन वी हैव वेज में कितनी वैरायटी होती है? वी हैव आलू। मैकडोनल्ड्स का देख लो ना, मेन्यू ही खोल दो ना मैकडोनल्ड्स का, आपको सामने सब आ जाएगा क्योंकि सब ट्राई किया होगा। आलू आलू टिक्की ट्राई किया होगा, पनीर वाला ट्राई किया होगा। देन आप बर्गर किंग का मेन्यू खोल दो, बर्गर किंग के आपने सारे ट्राई किए होंगे। देन आप कोई केएफसी का मेन्यू खोल दो, आपने वो भी ट्राई किया होगा। एंड सी, एक्चुअली लुक इन द abundance ऑफ योर लाइफ, कि कितना कुछ महाराजा मैक एंड कितना कुछ आपने खाया लाइफ में। एंड ये सब आपकी अपॉर्चुनिटीज थी। अभी हमने इससे पहले अपॉर्चुनिटीज ढूंढी थी ना। तो दीज, एवरी टाइम यू हैड वन ऑफ देम, वन ऑफ द आइटम दैट यू आर राइटिंग डाउन, इट वाज आल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बी ग्रेटफुल फॉर। कोक फ्लोट, व्हाट एल्स, बड़ा पाव, नूडल्स, जूस, फ्रूट केक, पास्ता। पास्ता में कितनी वैरायटी खाई है? देयर इज रेड सॉस पास्ता, देयर इज नाउ पेस्टो, एक पेस्टो वाली आती है, चीज आती है, वाइट आती है, पिंक आती है, रेनबो कलर्स जितनी पास्ता आती हैं आज की डेट पे। आपने लाइफ में स्टार्टिंग में एक खाई थी, फर्स्ट टाइम, याद करो, फर्स्ट टाइम मैंने लाइफ में जब पास्ता खाई थी, एक रेड सॉस आती थी, देन वाइट केम, एंड देन मोर एंड मोर एंड मोर। यस। अंजलि, अंजलि जी, आप अपना हैंड रेस कर दो सो दैट आई कैन मेक यू द को होस्ट। थैंक यू। या, देन वी हैव फ्राइड राइस। या, थैंक यू। fruit, then we have desserts, then we have सबवे। सबवे में कितनी वैरायटीज आपने खाई हैं? What all subways? You have corn and peas, you have patty, you have aloo patty, then you have the chicken layers also. अब ड्रिंक्स में आ जाओ, मॉकटेल्स में आ जाओ। जूसेस, मॉकटेल्स, व्हाट अबाउट देम? लेट्स स्टार्ट विथ सिंपल सिंपल स्टार। पहले जूसेस करते हैं सारे। आपने ऑरेंज जूस, पाइनएप्पल जूस, मैंगो जूस, शुगर केन जूस, बनाना शेक, वंडरफुल,
और क्या ट्राई किया लाइफ में? हम वी वेंट टू उत्तराखंड, तो वहां पे एक उनका कोई फ्लावर था, उसका जूस था बहुत टेस्टी। क्या नाम था उसका? हम्म, अभी याद आएगा। then pomegranate का juices, and then we came to shakes, सीताफल का शेक, मैंगो का शेक, cold coffee, hot coffee, you have cappuccino, you have latte, you have affogato, you have black coffee, you have americano, then you have चाय। चाय आप सबकी फेवरेट चाय, कौन कौन सी चाय आप पीते हो डेली बेसिस पे? मसाला चाय, अदरक वाली चाय, जिंजर टी, लेमन टी, ग्रीन टी, पिंक टी, ब्लू टी, मलाई चाय, एस्प्रेसो, कावा, पुदीना टी। देन आपने, आई एम श्योर सबके सब सबने एक नई इन्वेंशन की थी ड्यूरिंग द लॉकडाउन, जिसको हमने बोला था काढ़ा, जो मेरी लाइफ में पहली बार आया था तब, एंड मुझे बहुत पिलाया गया था वो काढ़ा। बट आई एम ग्रेटफुल, इम्यूनिटी अच्छी हुई थी। आई एम ग्रेटफुल, फैमिली बॉन्डिंग अच्छी थी। मुझे देख के एटलीस्ट वो हंस तो रहे थे फैमिली वाले कि शक्लें कैसी बनाते हो आप पीने के बाद। ठीक है, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। डलगोना कॉफी बनाई बहुत लोगों ने, मैंने भी बनाई थी, एंड आई थिंक वो लास्ट टाइम भी मैंने लॉकडाउन के टाइम ही पी थी वो, उसके बाद कभी मौका नहीं मिला मुझे। नींबू पानी, लेमन ग्रास टी, तुलसी टी। एंड लुक यार, मैंने लाइफ में कितना कुछ यूज किया है, कितना खाया है, इतना सा शरीर है एंड कितना कुछ खाया हुआ है ना? एंड आपकी जो आपकी बॉडी भी है, हाउ हाउ ब्यूटीफुल दिस बॉडी इज, कि इतनी वैरायटी ऑफ फूड खाने के बाद भी। एंड अभी तो वैरायटी ऑफ फूड, आप अभी हम वैसे चल रहे हैं, अगर आप कभी हो सकता है शादियों पे गए हो, तो आपने इटालियन के साथ चाइनीज भी खाया, उसके साथ आपने एक तंदूर नॉर्थ इंडियन का खाना भी ले लिया, डेजर्ट में आपने कहीं और का डेजर्ट उठा लिया, एंड आपने एक ही प्लेट के अंदर पूरा वर्ल्ड, कहते हैं ना द होल वर्ल्ड इज इन योर प्लेट, ऐसे सर्व किया हुआ है। एंड अपनी बॉडी को, अपने प्यारे मासूम बॉडी को वो सब कुछ, ये भी जावे वो भी जावे, एंड मिक्स अप करके बस डाल दिया पेट के अंदर कि बस हो जाएगा, विद द बिलीफ कि हाँ बॉडी विल हैंडल इट। बट थैंक यू फॉर द बॉडी, एंड थैंक यू फॉर द फूड, एंड थैंक यू फॉर द अबंडेंस ऑफ फूड जो हमें मिला है अपनी लाइफ में। महाराष्ट्रियन लोकल डिशेस, आज आप लोकल डिशेस शेयर कर सकते हैं, आप जहाँ से भी हैं अपने, अपनी एरिया की लोकल डिशेस क्या क्या है आपकी? पाव भाजी, देन जैसे बॉम्बे में आई नो वड़ा पाव इज फेमस, मिसल पाव, इडली, साउथ इंडियन में इडली, डोसा। इवन लिविंग इन नॉर्थ इंडिया आपको साउथ इंडियन फूड का भी एक्सेस मिल जाता है, वो भी ऑथेंटिक बिल्कुल। एंड वो भी आपके नॉर्थ इंडिया में रहते रहते, दिल्ली में रहते रहते आपने साउथ इंडियन का भी ऑथेंटिक फूड खाया है, आपने महाराष्ट्रियन का भी खाया हुआ है, आपने इटालियन फूड भी खाए हुए हैं, आपने फ्रेंच फूड भी खाया हुआ है, डोसा, यस, मैसूर उत्पा, थाई करी, थाई फूड खाया हुआ है, थाई करी, ग्रीन करी, ब्लैक रेड करी आती है, इडली, सुशी। वाह, दाल बाटी, उपमा। अब बस बस बस, बहुत हो गया, मेरा पेट भर गया इसको देख के। नाउ, कीपिंग इन योर माइंड ऑल दीज थिंग्स जो आपने लिस्ट बनाई अपनी, एंड फाइंडिंग ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज टू बी ग्रेटफुल, एंड देखो इनमें से बहुत सारे आइटम आपने मल्टीपल टाइम भी खाए हैं। सो उसका अब आगे हमने नेक्स्ट चैप्टर में मेडिकल इंग्रेडिएंट में क्या करना है, लेट्स स्टार्ट। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर दिस सेशन, एंड लेट्स वेलकम आश्विन मैम।
So good morning, ma'am. Good morning, everyone. Good morning, good afternoon, good evening, and thank you, बेटा जी. इतना खिलाया, थोड़ा भगा भी देते. खा खा के we are full with the beautiful delicacies of life. So thank you very much for the wonderful, tasteful beginning of the day. Thank you very much. So good morning, everyone. Good afternoon, good evening. And मुझे कोई भी नहीं दिख रहा इस समय. अब दिख रहा कोई. तो thank you. I hope I'm audible and visible to all of you. So good morning and happy birthday. morning, Good very good Good morning. morning, ma'am. Morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Magical morning. Magical Very morning, ma'am. magical Khalsa. Good morning. Thank you. Thank you. Out there. Thank you very much. Thank you, ma'am. Magical journey, and thank you very much, Betaji, for beginning these beautiful days, beautiful magical jadoo days with such a beautiful practice, beautiful intrinsic and intriguing journey inside us, inside our life. And this is what we are here to really observe and recognize कि हमारी जिंदगी में कितना कुछ है, कितना कुछ है जो रोजमर्रा में भी है, हर मोमेंट में है. और आगे बढ़ते बढ़ते जैसे हम और आगे के चैप्टर्स में जाएंगे, हर पल पल में कितना कुछ है टू बी ग्रेटफुल फॉर. एंड हाउ मच वी हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू बी इन प्रैक्टिस टू फाइंड थिंग्स. पहले तो ढूंढो, खोजो, क्योंकि जब तक आप ढूंढोगे नहीं, दिमाग का सबसे बड़ा काम क्या है? खोजना, ढूंढना, है ना, क्वेश्चन करना. ये दिमाग का काम है. दिमाग इसीलिए बनाया गया था एक्चुअली में. जब पहली बार शायद धरती पे भेजे गए होंगे, ह्यूमंस पैदा हुए होंगे, तो उनको शरीर क्यों मिला था? हाँ, उनको दिमाग क्यों मिला था? आत्मा तो मिली थी क्योंकि जर्नी स्टार्ट करनी थी, तो आत्मा ही आई है ना. वहां जहां से भी आई है वहां सिर्फ आत्मा ही आई थी. बाकी तो 5 एलिमेंट से बनाया, जो भी बनाया, शरीर बनाया, दिमाग बनाया. पर क्यों बनाया था? सोचो, कभी सोचते हो? मतलब कभी बैठ जाओ आराम से कहीं पे, क्यों बनाया होगा दिमाग सबसे पहली बार? जैसे कि अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल है, हाँ, आप कभी फादर या मदर बने होगे, तो आपने सोचा होगा कि चलो मैं शादी करता हूँ. भाई मैं अकेले बैठा बैठा, नंबर एक, शादी क्यों की थी? सबसे पहले तो ये सोचो कि शादी क्यों की थी. ओके, यू नीड अ पार्टनर. तो सबसे पहले वो जो भी परम पिता था, उसने अपने अपने लिए एक काउंटर पार्ट बनाया कि चलो मैं तो ठीक हूँ, बढ़िया चल रहा है लाइफ, पर अब मैं माया को बनाता हूँ. माया इज जैसे इसको शक्ति बोलते हैं ना, शिवा शक्ति में, तो मैं काउंटर पार्ट बनाता हूँ चलो अपने लिए. तो उन्होंने बनाया उसको. फिर उन्होंने कहा चलो अब हम दोनों तो है ही हैं, अब हम अपने बच्चे पैदा करते हैं. फाइन, तो उन्होंने बच्चे पैदा करे, जो भी इतने सारी क्रिएशंस पैदा करी हैं दोनों ने मिलकर. तो जितने भी ये चीजें, तो मैं कई बार सोचती हूँ, अब मेरा दिमाग ऐसे ही चलता है कि बैठे बैठे सब 1 मिनट के अपने आप को रख के देखो उसके प्लेस के ऊपर कि तू शादी कर रही है, क्यों कर रही है? नंबर एक. फिर तू बच्चा पैदा कर रही है, तो क्यों कर रही है? तो अगर कोई भी माँ बाप बच्चा पैदा करते हैं तो क्यों करते हैं? मारने पीटने के लिए, उसको उसको लताड़ने के लिए, उसको दुखी करने के लिए? नहीं, मजे करने के लिए. मतलब बच्चा क्यों पैदा करते हैं? कि हम भी इसके साथ खुश होंगे, हम भी इसके साथ खेलेंगे, हम भी इसके साथ बहुत मजे करेंगे, है ना. और ये बहुत अपना तरक्की करेगा, नाम कमाएगा, अपना नाम रोशन करेगा, हमारा नाम रोशन करेगा. मोस्टली माँ बाप का मोर और लेस यही होता है कि बच्चा इसलिए पैदा करते हैं कि भाई हमारी जिंदगी बहुत अच्छी है, पर इसके आने से और अच्छी हो जाएगी. और ये हमारा नाम रोशन करेगा. यस और नो? मोस्टली आई फील, है ना, नाम रोशन करेगा हमारा, हमारे हमारे को और ज्यादा दुनिया में इज्जत कमाएगा. इज्जत का क्या मतलब होता है? मतलब रोशनी कमाएगा और ज्यादा, है ना. तो मेरे ख्याल से उनके पास एक रोशनी थी, छोटी सी रोशनी दी थी उन्होंने, जो जो भी उन्होंने छोटी छोटी बांटी है, अंश बनाया हमारे को अपने, है ना. और उनका बस ये की मोटिव था कि तुम जाओ, मजे करो, वहां पे बहुत सारी चीजें हैं, हम मतलब हमने बना के दी हैं, उसको खाओ पियो ऐश करो, बस हमें याद रखना, मैं शुक्राना करते रहना, और बस हमारा नाम रोशन करना. जैसे कि जिस भी नाम से उस परम पिता को आप जानते हो, बस उसका नाम रोशन करने का मतलब उसका नाम, जैसे कि अल्लाह, अल्लाह को याद करते हो तो उनका शुक्राना, जिसके भी नाम से आप उनको जानते हो, है ना, अपने पेरेंट्स जो भी परम पिता होते हैं. एंड बस उनको शुक्राना करते जाओ, शुक्राना करते जाओ, उनको शुक्राना करते जाओ, ताकि उनका नाम और पॉजिटिव 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 रोशनी के साथ जुड़ता चला जाए. तो इफ यू अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ नाम जप, वो यही है कि आप जैसे राम जी को भी बोलो, वो भी कह रहे हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा, वाहे गुरु वाहे गुरु. तो मतलब कुछ तो ऐसा है ना कि किसी एक नाम के साथ आप पॉजिटिव सेंटेंस जोड़ो. और जब हम देखते हैं कि दुनिया में हर चीज, हर में तो वही रमे है, हर चीज में. अभी गिलास भी बनाए या कोई भी बनाए, तो एलिमेंटली भी अगर आप सोचो एलिमेंट्स के, तो सब चीजें उन्हीं से बनी हुई है. तो जब हम थैंक यू जोड़ देते हैं हर चीज के साथ, थैंक यू चश्मा, थैंक यू शॉवर, थैंक यू बॉटल, थैंक यू पेड़, थैंक यू हवा, ये बिगनिंग होती है उस रोशनी वाली दुनिया में एंटर करने की, उनका नाम रोशन करने की. और उनका नाम रोशन करते करते तुम्हारा नाम अपने आप रोशन हो जाएगा, अपने आप. लाइक इट्स दैट इजी. पर हम उस प्रैक्टिस में बने रहें स्टार्टिंग में, बिकॉज
ये एक टग ऑफ वॉर होती है ना, गेम तो चल रही है ना, वो उधर खींचेगा वो उधर खींचेगा। तो वो कह रहा है मेरा नाम रोशन, तो मैं कह रही नो नो नो, मेरा नाम, मेरे को जब हर समय पैसा दे दो, ये दे दो वो दे दो वो दे दो, मुझे जब। तो वो अपना काम कर रही है, वो अपना काम कर रहे हैं, और दोनों अपना अपना रोल बहुत प्यारे मतलब कहते हैं ना बखूबी निभा रहे हैं। पर हमें किस तरफ जाना है? तो यहाँ से हमारी वांट शुरू होती है, यहाँ से हमारे दिमाग का काम शुरू होता है। दिमाग हमें मिला था सबसे पहले अपने आप से पूछने के लिए, ढूंढने के लिए, खोजने के लिए कि तू क्या चाहता है, तू बता। अंधेरे की तरफ जाना है, रोशनी की तरफ जाना है, यहाँ करना है, ये करना है, जो भी करना है। एंड दिस इज वेयर आई थिंक कई बार हम कहते हैं ना डेस्टिन्ड है, हर चीज डेस्टिन्ड है, पहले से लिखी हुई है। आई ऑलवेज से जो मर्जी पहले से लिखा हो, बट ह्यूमन हैज अ ब्रेन, ह्यूमन हैज अ माइंड, एंड ह्यूमन हैज ऑलवेज दिस माइंड टू यूज फॉर मेकिंग चॉइसेस। चॉइस तो अभी भी हम कर सकते हैं ना, अभी हालात जो अभी आ रहे हैं वो तो पीछे के बीजे हुए हैं, जिसका फल मुझे अभी मिल रहा है। पर इस समय मुझे क्या क्रिएट करना है, इसकी चॉइस तो मैं कर सकती हूँ। इस समय मुझे कंप्लेंट करनी है कि शुक्राना करना है, इसकी चॉइस तो मैं कर सकती हूँ। जितने मर्जी दर्दों में भी होते हैं, मतलब समटाइम्स दिस सेजेस really teach us so well, like I learned it from, not learned it, I just observed it। learn तो जब प्रैक्टिस की बात होती है, लाइक वो पत्ते तवे पे बैठे हुए हैं, स्टिल ही इज पीसफुल। मतलब कि उनके ऊपर मतलब किसी को तुमने उबले हुए पानी में डाल दिया, स्टिल यू आर पीसफुल। क्यों? क्योंकि शरीर के ऊपर कंट्रोल आ चुका है, दिमाग पे कंट्रोल आ चुका है। अब वो दिमाग को वो करवा सकते हैं जो वो करवाना चाहते हैं। अगर वो उस शांति में रहना चाहते हैं, वो शांति में रह रहे हैं, पीसफुल रह रहे हैं, हैप्पी रहना चाह रहे हैं, रह रहे हैं। और ये शरीर और दिमाग तुम्हें इसी प्रैक्टिस के लिए मिला है, to enjoy whatever you have, and really learning and practicing to be in that situation where you want to be. And right now we are in the practice of learning the gratitude through these beautiful, wonderful, divine books of magic and jadoo। कैसे हम हर सिचुएशन में, अच्छी सिचुएशन है, टफ सिचुएशन है, ब्रेकडाउन सिचुएशन है, negative situation hai, but how can we find something positive in that? How can we find reasons to be grateful? And this is such a magical practice। अगर आप इसको सच में दिल से करते हो और एक लंबे टाइम तक करते हो, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि प्रैक्टिस ये नहीं होता ना कि थोड़ा सा कर लिया हो गया। बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो 6-7 घंटे तो स्कूल में जाते ही है ना, यस नो मे बी। प्रैक्टिस जो भी पढ़ते लिखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं 6-7 घंटे, तो एक छोटा बच्चा भी स्कूल में जाता है ना, कुछ नया सीखने के लिए, ABCD सीखने के लिए, 1 2 3 4 सीखने के लिए। और आप तो इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा रूल सीख रहे हो इस समय, उस रूल को अपने अंदर इनग्रेन कर रहे हो, प्रैक्टिस करो। और आप सोचो कि मैं बस ऐसे एक मिनट में सीख के निकल जाऊंगा, ऐसे नहीं होता ना। हमने भी टाइम लगाया था हर चीज को लिखने पढ़ने सीखने में। तो ये एक नई जीवन शैली है, एक नया माइंड सेट है जिसको सीखना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम, कमिटमेंट, एनर्जी एंड इंटरेस्ट for creating this new mindset, for creating this new way of life for yourself। Thank you very much। And आज हम जिस जिस चैप्टर में एंटर कर रहे हैं, उस चैप्टर को करने की वजह से आपकी जिंदगी में ये माइंडसेट का बनना बहुत आसान हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू, बहुत आसान हो जाएगा अगर आप इस चैप्टर को समझकर इसको बस अपनी लाइफ में फॉलो करना शुरू कर दो। तो कैसे करना है, चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का कमाल का चैप्टर, द मैजिकल इंग्रेडिएंट। यानी कि अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे तो इसका नाम है द तो नहीं बोलेंगे जादुई तत्व। तो पहले 1 मिनट फोटो देख लेते हैं, ठीक है? बिकॉज आई फील दिस पिक्चर्स आर सो पिक्टोरियली रेफरेंशियल एंड वेरी वेरी यूजफुल। अगर आप इसको ध्यान से समझो कि कहना क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है आपको? एक चाय का कप दिख रहा है ना? कप में चाय है, ऊपर स्पून है, स्टिरर है, आई थिंक स्टिरर है, साथ में एक कुकीज या सैंडविच जैसा कुछ पड़ा है, दिख रहा है सबको? बोलो यस। सैंडविच जैसा लग रहा है मुझे ज्यादा, या कुकीज भी हो सकती हैं, चलो ठीक है, जो भी है, कुछ खाने पीने का सामान पड़ा है मोटा मोटा, ठीक है? तो आज हम खाने पीने की दुनिया से अपनी दुनिया में कितना अंदर तक, गहराई तक जा सकते हैं और अपनी जिंदगी को जादुई बना सकते हैं, हम ये सीखेंगे। तो आर यू रेडी? मैं खाना पीना तो आसान है ना। अब बोलो मैडम हाँ इसमें तो कुछ लिखना भी नहीं है तुम्हें कुछ लिखना नहीं है, तुम्हें सिर्फ खाना और पीना है और खाते पीते ही इस प्रैक्टिस को हमने अपनी जिंदगी में बहुत डीप उतारनी है, ठीक है? तो चलिए सीखते हैं और बड़ा ध्यान से सीखेंगे। क्यों? पहले सीख लो फिर बताऊंगी क्यों। क्योंकि समझिएगा आप, जब मैं हमेशा अपने बच्चों को भी पहले सिखाती थी जब बचपन में, मतलब कि जब तक चाहे पिज्जा है, चाहे नूडल्स हैं, चाहे मतलब आई एम नॉट, मेरे पता नहीं क्यों शुरू से माइंडसेट बड़ा बड़ा क्लियर है क्या
कि जरूरी नहीं है कि कोई चीज आप बोल रहे हो तो इसलिए हेल्दी है या अनहेल्दी है। आई ऑलवेज से आपने किस नियत से खाई है उसको। मतलब जैसे कई लोग कहते हैं वेज नॉन वेज, या अल्कोहल नॉन अल्कोहल, या जंक फूड और ग्रीन फूड और ये और वो। मैं कहती हूँ अगर तुमने ग्रीन फूड, तुम पालक भी खा रहे हो और चिड़चिड़ करके खा रहे हो, मतलब तुम्हें मन नहीं आ रहा, तो मुझे कई बच्चों को मैंने कई बार देखा है नाक बंद करके दूध पी रहे होते हैं, या चिड़चिड़ करके पालक खा रहे होते हैं, टिंडे घिए बहुत नाक बना के खा रहे होते हैं, मतलब मजबूरी में, नेगेटिविटी में। मैं कहती हूँ तुमने ना उसके प्लेट में जहर परोसा है, जहर। वो बंदा अगर परेशान होकर वो टिंडे खा रहा है ना, मतलब नेगेटिव होकर टिंडे खा रहा है, उसकी जिंदगी में कभी वो पॉजिटिविटी दे ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इट्स योर एनर्जी। इट्स नॉट दैट टिंडा विच इज मेकिंग यू हेल्दी, इट्स योर एनर्जी विच इज मेकिंग यू हेल्दी और इल। और अगर सपोज बच्चे ने जब पिज्जा खाया, बड़ी खुशी से खाया, बड़े शुक्राना करके खाया, बड़े पॉजिटिविटी के साथ खाया, वो पिज्जा भी उसके बॉडी में जाके अमृत बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इट्स एनर्जी। हम क्यों अपने दिमाग के किसी दकियानुसीपन की वजह से, अखड़ता की वजह से, हम पता नहीं, दिस इज कॉल्ड एजुकेशन। आप जो खा रहे हो आप अपने आप से पूछो, अपने खुद से पूछो कि क्या ये खाना आपके लिए अच्छा है। अगर बॉडी कहेगी यस अच्छा है, तो शुक्रगुजार हो और खा लो। आप जो भी खा रहे हो पी रहे हो, अपने आप से पूछो क्या ये खाना आपकी बॉडी, क्योंकि देखिए हर किसी की अपनी अपनी बॉडी होती है ना, हर किसी के अपने अपने टारगेट्स होते हैं, अपने अपने कॉन्टेक्स्ट होते हैं। अब जैसे कई लोग होते हैं, कॉन्टेक्स्ट इन द सेंस कि आपकी सोच, आपके बिलीफ सिर्फ आप जानते हो और कोई नहीं जानता। तो इसलिए अपने बिलीफ से आप पूछो अपने आप को। जैसे कि कोई मुझे पूछे कि क्या नॉनवेज खाना अच्छा होता है, मैं कहती हूँ अपनी बॉडी से पूछो यार, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं अपनी बॉडी से पूछ सकती हूँ। तो मैंने अपनी बॉडी से एक बार पूछा कि क्या चिकन खाना मेरी बॉडी के लिए अच्छा है, तो मेरी बॉडी में से जवाब आया कि देखो, अगर तो आपको जिंदा रहने के लिए कुछ और नहीं बचा आपके पास, और आपके पास ये आखिरी रिजॉर्ट है कि किसी और जीव को मार के खाने से ही आप जिंदा रह सकते हो, तो फिर ठीक है, उस समय आखिरी रिजॉर्ट है आपके, आखिरी ऑप्शन है आपके पास। पर खाली अपने स्वाद के लिए, सिर्फ अपने टेस्ट बर्ड्स के लिए, यानी कि आपके पास दाल सब्जी बहुत कुछ है खाने को, पर अपने टेस्ट बर्ड्स के लिए एक जीव की हत्या करोगे तुम? क्यों? तुम्हारे पास खाने के लिए और कुछ है तो सही। हाँ नहीं है कुछ, फिर भी जिंदा रहने के लिए तुमने मछली मार के खा ली है, चलो जो भी खा लिया तो ठीक है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन लाइफ को सबसे सर्वोपरि, सबसे सर्वोपरि योनि है ये सारे के सारे जीवों के अंदर। तो आपको अपना पर्पस फिल करने के लिए अगर जिंदा रहने की जरूरत है और तब वो मजबूरी पड़ गई है, तो तुम किसी और को जीव को मार रहे हो, तो वो ऑप्शन फिर भी एक लास्ट ऑप्शन है। हम एग्री नहीं कर रहे, पर मेरी बॉडी ने बोला मैं एग्री नहीं कर रही, पर मैं वो लास्ट ऑप्शन देती हूँ तुझको। पर उससे पहले अगर तेरे को घास भी मिल रही है खाने को, तोरी मिल रही है, टिंडे मिल रही है, कुछ भी खाने को मिल रहा है, अगर तू उसको खा के जिंदा रह सकती है, दैट इज बेटर। एंड दैट मोमेंट आई रिमेंबर फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, कि आई एम नॉट गोइंग टू किल एनी अदर जीव जस्ट फॉर माई टेस्ट बर्ड्स। सिर्फ अपने स्वाद के लिए उस बेचारे को मार दूं मैं? इतनी भी मैं स्वाद के लिए गुलाम नहीं हूं अपनी। So this is what my body answered when I had this conversation with myself long time back. Why? Because I was a die-hard chicken trainee. मतलब चिकन तो मेरी जान थी उस टाइम पर। मतलब कि चिकन चिली चिकन, बटर चिकन, तंदूरी चिकन, अफगानी चिकन, मतलब आई लव चिकन, स्पेशली फिश ऑरलेस मैं बहुत खाती थी उस जमाने में। तो मतलब अच्छा लगता था, हमारे घर में सब खाते थे, हम भी खाते थे। पर वो मोमेंट जब मेरी लाइफ में आया, मुझे पहली बार पता चला यार सारे आंसर्स तो मेरे अंदर ही हैं, मैं बाहर क्यों ढूंढ रही हूँ? एंड दिस इज कॉल्ड बिगनिंग ऑफ अ न्यू जर्नी फॉर विद योर ओन सेल्फ। तो आज हम जिस जर्नी में बढ़ेंगे, कुछ भी अच्छा बुरा नहीं हम कह रहे, पर अपने आप के साथ शुक्रगुजार, उस फूड के साथ शुक्रगुजार रहो। ये फूड ही आपको आपके ब्रह्म ज्ञान तक, आपके सारे आंसर्स तक लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक ये फूड प्लेट में है, ये भोजन है, पर जब भी आपके मुंह से अंदर चला जाता है, आपके शरीर में चला जाता है, यही भोजन आपका शरीर बना रहा है, आपके अंग बना रहा है, आपका दिमाग बना रहा है, आपके हर बॉडी पार्ट को यही कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो जब ये भोजन अंदर जा रहा है, ये किस एनर्जी के साथ अंदर जा रहा है? 8वां दिन जादुई तत्व शुरू करें। 8वां दिन जादुई तत्व। मैम मेरी वॉइस क्लियर है? थैंक यू। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। WJ कैमरॉन, पत्रकार और व्यवसायी। हाँ, अगर कृतज्ञ दिन, अ ग्रेटफुल हार्ट ऑलवेज हैज सेलिब्रेशन। मतलब कि अगर आप कृतज्ञ हृदय वाले इंसान हो और हर समय कृतज्ञ हृदय के साथ ही आसपास रहते हो, तो आपकी जिंदगी में हमेशा, ये कहते हैं ना, हमेशा एक भोज, हमेशा एक सेलिब्रेशन, हमेशा संपन्नता बनी रहती है, एंड यू ऑलवेज आर सेलिब्रेटिंग। पर कैसे? आगे बढ़ते हैं। भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है, प्राचीन मिस्र के समय से।
21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन खाने पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं, तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। तो आप में से कितनों को याद है पुराने जमाने में हमारे दादा या किसी को देखा होगा, वो खाना खाने से पहले उनको नमस्ते या थैंक यू या ऐसे कुछ करते थे, या पानी हाथ में लेकर भोजन की थाली के चारों तरफ अर्घ देते थे। कुछ तो करते थे। इवन वेस्टर्न कंट्रीज में तो अभी भी होता है, मतलब काफी फैमिलीज को मैंने देखा है करते हुए, कभी मूवीज में कभी रियलिटी में भी थैंक्स गिविंग करते हैं। वो खाना खाने से पहले वो डाइनिंग टेबल के चारों तरफ बैठ जाते हैं और हाथ पकड़ लेते हैं एक दूसरे का, मतलब चेन बना देते हैं चारों तरफ से, जिसको हम कहते हैं ना ग्रेटिट्यूड सर्कल। तो सब एक चेन बना लेते हैं और चेन बना के फिर वो ग्रेटिट्यूड करते हैं खाने का, और उसके बाद ही खाना खाना शुरू करते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू सीन दिस काइंड ऑफ रिचुअल्स? हमारे स्कूलों में भी, मतलब हमारे स्कूल में तो बहुत अच्छी तरह से सिखाया जाता था कि लंच से पहले प्रेयर होगी, उसके बाद ही आप लंच ओपन कर सकते हो, खा सकते हो। तो मतलब कहीं ना कहीं हमें सिखाया तो गया है, हम ही भूल गए यार। इसलिए हमारी जिंदगी इतनी मुश्किलों की तरफ बढ़ गई, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हमारी बॉडी में एंटर कर गई। क्यों? क्योंकि हमने खाने और पीने जैसे आसान काम को अपनी पॉजिटिव एनर्जी बनाने के लिए यूज करना बंद कर दिया। तो दोबारा से सीख लेते हैं, चलो सीखते हैं। यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सचमुच बहुत तेज भूख लग रही थी, तो आपको याद आएगा कि तब आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे, ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी। हो सकता है आप कांपने भी लगे हों, आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया था और आपकी भावनाएं रसातल को छूने लगी थी। और ये सब चंद घंटों तक कुछ ना खाने से ही हो सकता है। दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बड़ी बात है। एज आई सेड, भोजन इज नथिंग बट एनर्जी। अलग अलग रूप में जो आप खा रहे हो पी रहे हो, और आपको पता होगा कि अगर आपने काफी टाइम तक अगर कुछ नहीं खाया पिया तो आपकी एनर्जी डिक्रीज हुई है। से यस और नो? मतलब आपकी एनर्जी नीचे जा रही थी उस समय, जैसे कि एक बैटरी नहीं होती फोन की बैटरी, वो लो डाउन लो डाउन लो डाउन होते हुए नीचे जाती है और उसकी फंक्शनिंग रुक जाती है। तो ये बात तो आपको क्लियरली पता है कि आपकी बॉडी की फंक्शनिंग, आपके सिस्टम्स, आपकी जो भी क्रियाएं हैं, सोचने मतलब सोचना क्या, आप बिल्कुल निढाल हो जाते हो, बेहोश हो जाओगे थोड़े टाइम बाद। तो अगर आज आपको सोचना परेशान कर रहा है, आपकी सोच आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जा रही है, तो एक बार खाना चेक करो अपना, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, और किस किस तरह की एनर्जी को सोचते हुए आप खाना या पीना अंदर डाल रहे हो अपने अंदर, क्योंकि आपकी बॉडी की एक एक क्रिया खाने और पीने से रिलेटेड होती है। आगे। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकालें और उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया। आपको ताजे फल और सब्जियां मिले, इसके लिए किसानों को फल और सब्जियां उगानी पड़ी। उन्हें लगातार सींचना पड़ा और कई महीनों तक उनकी रक्षा करनी पड़ी। तब कहीं जाकर वे कटने के लिए तैयार हुई। फिर फसल वाले, पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले लोग जो दिन रात बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं, ये सभी लोग मिलकर पूरे सामंजस्य में काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताजी पहुंचे और साल भर उपलब्ध रहे। कई बार हमें लगता है कि सिर्फ पैसे देकर हम ये सब चीजें लेने के हकदार हैं। पैसा इज जस्ट अ टूल। पर अगर आप ध्यान से, आप में से कितने लोगों ने कभी घर में टमाटर उगाए हैं, या धनिया उगाया है, या पुदीना उगाया, या हरी मिर्च उगाई है? एंड यू विल सी कि कितना टाइम लगता है ना। एक बार मैंने टमाटर उगाए थे, भैया 2 टमाटर आए, इतनी मेहनत, मतलब कितने महीनों तक पहले बीज बोए, फिर उसको सींचा, फिर उसको पौधे बाहर आए, फिर उसको कितना कितना बचाना पड़ता है, मौसम में भी किस किस चीजों से बचाना पड़ता है, तब जाके एक टमाटर हाथ में आता है। मतलब अब ये पुदीने का मौसम आया हुआ है तो पुदीना उगा हुआ है छत पे ना, तो मैं वही देख रही हूँ यार। मतलब कि मैं तक खुश होती हूँ देख के धनिया पुदीना, और हम इतनी सी गड्डी बनती है वो अगर पूरा काट दो। और सब्जी वाले आजकल 20-20 रुपए में पूरी इतनी बड़ी बड़ी गड्डी देके चले जाते हैं। मतलब पैसे की बात नहीं है, पर कौन है जो इतनी इतनी की ताजी सब्जियां उगा रहा है और हम तक ताजी की ताजी फ्रेश खिली खिली पुदीना हमारे घर तक पहुंच जाती है।
ऊपर छत से लेके नीचे लाओ ना तो भी 2-3 घंटे में उठा ऐसे हो जाती है। मतलब कई बार हो जाती है, मैं गिर जा ऐसे, मतलब हो जाने तो थोड़ा सा ताजापन कम हो जाता है। पर ये कौन है यार, कहाँ उग रही है, कौन सींच रहा है, कौन इनको पाल रहा है, कौन इनकी केयर कर रहा है, कौन कटाई कर रहा है, कौन इनकी पैकिंग कर रहा है, कौन से रेफ्रिजरेटर्स में कौन कौन से खेतों से कौन, जैसे सेब है, उगते मनाली में हमारे यहाँ पे सब्जी वाला सुबह सुबह ताजे ताजे सेब ले लो, हाँ सुबह सुबह बेच रहा होता है। तो ये कहाँ से आ जाता है इतना फ्रेश फ्रेश? कुछ तो है ना जो कि कोशिश कर रहा है, कोई तो है जो पूरे के पूरे ऑर्केस्ट्रा, मतलब इस कहते हैं ना पूरे के पूरे इस सामान्य को बना के रखा हुआ है ताकि आप तक ताजी फल और सब्जियां पहुंचे। हमने कभी सोचा उनके लिए थैंकफुल होना? वो कौन सा खेत था, वो कौन से किसान थे, वो कौन सी पानी का पंप था जिससे वो सब्जियां उगी सींची, है ना, किसने काटा, किसने पैक किया, कौन थे वो ड्राइवर जो वहां से लेकर हमारे मंडी तक और मंडी से लेकर हमारे घर तक रेडियो पे लेके आए। एवरीवन डिजर्व्स अ थैंक यू। मांस उपलब्ध कराने वालों, मांस उपलब्ध कराने वालों, मछुआरों, दूध दही बेचने वालों, चाय कॉफी उगाने वालों और सोचो कि दूध कोई बेचता ही नहीं है। एग्जाम्पल, ओके, अगर आप दूध पीते हो तो दूध दही खाते पीते हो तो मतलब दूध कोई बेचता ही नहीं है, तो आपको सोचो अपनी खुद की गाय लेनी पड़े, मतलब खुद की गाय पहले तो ढूंढो, फिर खरीदो या पालो, और उसके गोबर भी उठाओ, उसको चारा भी खिलाओ, और वो जो घर में वो जो गाय की गोबर की स्मेल आएगी वो भी मैनेज करो, हाँ फिर जाके आपको दूध मिलेगा। आपको ये क्या लग रहा है सिर्फ पैसा देने की वजह से आपको दूध मिल जाएगा? मतलब सोचो कि अगर ये ना हो, ये लोग नहीं हो, ये प्रोवाइड ना करे हमको, तो आपके पास पैसे भी होंगे ना, तब भी कितना गोबर उठा लोगे तुम अपने आप। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द कोरोना टाइम्स अगेन, क्योंकि वो जो लॉकडाउन पीरियड्स था ना, उसमें काफी कुछ चीजें एक्चुअल में सीखने को मिली कि हमारे पास पैसा तो बथेरा है, परंतु अगर कोई बेच ही नहीं रहा, बाहर है ही नहीं कोई बनाने वाला बेचने वाला, तो पैसा थोड़ी ना रोज दूध में डाल के खा लो या मतलब प्लेट में डाल के खाओगे आप, कि मतलब पैसे हैं, गड्डियां हैं पूरी की पूरी, फिर उससे क्या फायदा होगा अगर ये कोई कर ही नहीं रहा है मेहनत, तो आप तक पहुंचा ही नहीं रहा तो, है ना? तो चाय कौन उगा रहा है, कॉफी कौन उगा रहा है, कौन उसको वो जो जो भी करते हैं कॉफी को आप तक प्रॉपर फिल्टर कॉफी इतनी बढ़िया आपके घर तक पहुंच जाती है, आप रेडी टू मेक, कौन कर रहा है यार? आगे और सभी फूड पैकेजिंग कंपनियों के बारे में सोचें जो हमारे भोजन को तैयार करने के लिए अथक श्रम करते हैं। दरअसल विश्व का आहार उत्पादन एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है जो हर दिन होता है और यह समझ से परे है कि ये सब काम करता है। जब आप इस बारे में विचार करते हैं कि स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, सुपरमार्केट्स, कॉफी हाउसेस, हवाई जहाजों, स्कूलों, अस्पतालों और संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थ की आपूर्ति को बनाए रखने में कितने सारे लोग शामिल होते हैं। आपके घर में पीने का पानी, है ना, पहुंच जाता है। अब तो आरओ का फैशन आ गया, आज से 20 साल पहले आरओ वारो कुछ नहीं होते थे। घर में 2 नलके होते थे, एक नीचे बोरिंग का नलका जो अंडरग्राउंड पानी लेके आता था, एक जो वो म्यूनिसपैलिटी का एमसीडी का जो नलका होता था जो पीछे नदियों से या किसी, है ना, ऐसे वाटर बॉडी से पानी लेके आता था। तो हम जो खारा पानी होता था नीचे जमीन के नीचे वाला, नॉर्मली हम वो नहीं पीते थे, वो बाकी कामों में यूज होता था, और एमसीडी वाला जो पानी आता था वो सब ड्रिंकिंग में यूज होता था, है ना, और डायरेक्ट नलके से भर लेते थे हम अपने जहां भी भरना होता था। आरओ वाला तो अभी नया एडिशन हुआ है आपकी लाइफस्टाइल में। आरओ वाटर फिल्टर जो भी होते थे, कितने लोगों को याद है कि आप वो डायरेक्ट पानी पी लेते थे, डायरेक्ट जो आता था। इवन कहीं पे कई लोग तो हैंडपंप का पानी भी पी लेते थे, या इस रस्तों में प्याऊ लगे होते थे जिनमें डायरेक्ट ये पाइपलाइन जुड़ी होती है, और उसका पानी पी लेते थे, मटके में बड़ा पानी पी लेते थे, तो मतलब काइंड ऑफ वो, और उस जमाने में भी हम जिंदा रहते थे, हम इतने हेल्दी रहते थे तब भी। अब जितने ये आरो पारो का झंझट डाल दिया उसके बाद देखो अब बॉडी अब कैसी हो गई। और उस समय तो भैया हम नदी का पानी भी उठा के पी लेते थे। कोई भी बहता पानी पी लेंगे, कोई भी कहीं से भी पानी उठा लो, सब हमारे को सब हजम था उस टाइम पे। खैर एनीवेज, मतलब अब आपके घर में जो पीने का पानी पहुंच रहा है, तो आप तो नहीं ला रहे ना किसी कुएं में से निकाल कर, आप तो नहीं ला रहे ना किसी नदी में से निकाल कर, किसी ने तो पाइपलाइंस डाली हैं, किसी ने आपके घर तक पहुंचाया है ना, जो भी कर कर आके आप तक पीने के लिए अप्रोप्रिएट बना के आप तक पहुंचाया है। कभी थैंक यू बोला? सोचो, आपने वो मूवी देखी है जिसमें वो था नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिसकी बीवी वो पानी भर के लाती थी नदी से, पहाड़ के उस तरफ से जाकर, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, जिसमें वो पहाड़ काट काट के रास्ता बनाता है नदी तक पहुंचने का। हाँ, सोचो कि आपको रोज वैसे ही मटके उठा के रोज पहाड़ियां पार करके नदी तक जाना पड़ता पानी लेने के लिए, या अपना कुआं खोदना पड़ता। कोई तो है जो आप तक पानी पहुंचा रहा है रेगुलरली।
Are we really thankful for the wonderful services we are getting, for the wonderful food stuff we are getting? मतलब घर में बैठे हो, ब्रेड आ जाएगी, मक्खन आ जाएगा ना, आपको मक्खन निकालना नहीं पड़ा। वो देखो बेचारी कृष्णा की मम्मी सारा दिन गच 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 गच, तब जाके मक्खन निकलता तो वो बच्चे तोड़ के खा जाते थे। तो आई मीन कि आप लोग कौन, कृष्णा की मम्मी तो करती थी ना, कृष्णा चोरी कर लेता था उनका मक्खन सारा का सारा। अब हमारे यहाँ पे देखो, ओहो अमूल का मक्खन, व्हाइट मक्खन, ये मक्खन वो मक्खन, वैरायटी वैरायटी आई पड़ी है इतनी सारी मक्खनों की। कौन बना रहा है, कौन पहुंचा रहा है, और बिल्कुल फ्रेश। बिल्कुल जब नया नया मक्खन घर में आया ना, उसी दिन ओए होए होए होए, जिस दिन आप पैकेट खोलो उस दिन फ्रेश फ्रेश खा के देखो, क्या स्वाद आता है जीभ पे, मतलब मजा आ जाता है खाकर। मतलब कोई तो है जो इतना टेस्टी चीजें, इतनी हाइजेनिक, इतनी हेल्दी चीजें हम तक पहुंचा रहे हैं, बना रहे हैं, और हम बस खा रहे हैं। थैंक यू कौन करेगा, तुम्हारा चाचा? तो मतलब याद तो रखना चाहिए ना, किसी ने तो मेहनत करी है। मेरे को ना एक चीज याद है, हमारे को बचपन में पापा बोलते थे कि हर एक को, मतलब हर एक बाइट खाने के लिए, जो भी हम बाइट करते हैं रोटी के खाने के लिए, तो मैं 32 बार चबाना चाहिए। कितनों ने सुनी है ये बात कभी, कि हर एक बाइट को 32 बार चबा? मैं 32 32 बार कौन चबा सकता है एक बाइट को, उसको कुछ नहीं बचना अंदर मुंह में। जब मैंने मैजिक प्रैक्टिस शुरू करी तो मुझे याद आया पापा का, कि वो 32 बार शायद इसलिए कह रहे होंगे कि जब मैं फोकस कर रही हूँ अपनी हर एक बाइट पे और उसको आराम आराम से कर, शायद इस बाइट को मेरे मुंह तक पहुंचाने में 32 थैंक यूज ड्यू है। कोई ना कोई 32 लोग वो हैं, या ट्रक है, या रिक्शा है, या रेडी है, या किसान है, या उसको बीनने वाला है, उसको छानने वाला है, उसको पीसने वाला है, जिसने आटा बनाया, उस चक्की वाले का, चक्की को घुमाने वाले का, ना जाने कितने लोग। जब तक वो शक्ति भोग आटा की थैली मेरे घर तक पहुंची है, मिनिमम 32 लोग इसमें इंक्लूड होंगे, जिसने रोटी रोटी मेरी थाली तक पहुंचाई है। क्या मैं हर बाइट को खाते हुए उन 32 लोगों को 32 बार थैंक यू बोल सकती हूँ, उन चीजों को, लोगों को? तो मैंने शुरू की थी ये वाली प्रैक्टिस ना उस जमाने में, ओके लेट मी ट्राई। तो मैंने करना शुरू किया, क्योंकि हर चीज जो हमारे तक पहुंची है ना, इसका कोई ना कोई साइंस है। हमारे पुराने लोग तो बहुत इंटेलिजेंट होते थे, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते थे, हर चीज खोजी हुई है उन्होंने। तो अब मेरे मतलब, इफ यू कैन डू, ओके हैव दैट, उस समय टीवी देखना, बातें करना, मतलब भोजन करना। अच्छा कभी ये सुना है भोजन करते खाते हुए बातें नहीं करनी चाहिए? कभी ये सेंटेंस सुना है आपने, कि जब आप खाना खा रहे होते हो तो बातें नहीं करनी? क्यों नहीं करनी, बाद में बात करते हैं, अभी आगे आगे बढ़ते हैं। भोजन एक उपहार है। यह प्रकृति का उपहार है, क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध न कराए, तो हम में से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ न रहे। तो यहाँ पर अभी पानी देख, मिट्टी मिट्टी उसी ऑब्वियसली मिट्टी में पोषक पदार्थ होंगे, जो भी उर्वरक होते हैं, या जो भी चीजें होती हैं, और पानी। तो आज आपको मिट्टी और पानी, अगर आप कुछ भी खाना खा रहे हो मिट्टी में होगा, पानी ने उसको सींचा है, उसको है ना नरिश किया है, और सूरज यानी कि अग्नि ने उसको पकाया है। चाहे वो खेतों में पकाया हो, चाहे आपके घर में पकाया हो, अगर धूप ना निकले, या है ना, या सूरज ना निकले, तो वो पकेंगे भी। 3 चीजें हैं ऐसी, जो भी आप खाना खा रहे हो, इन तीनों को हमेशा याद रखना मिनिमम। आगे। पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव नहीं है। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन में, अस्पतालों में, ईंधन, खनन और उत्पादन करने वाले उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने में, सड़कें बनाने में, कपड़े और संसार के हर उपभोक्ता उत्पाद तथा उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच व धातु बनाने में, जीवन बचाने वाली दवाएं बनाने में और हमारे मकान तथा हर अन्य इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। और पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है। पानी, पानी, जीवनदायक पानी। यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिस्ट्री में आप एंटर कर रहे हो, अनफोल्ड नहीं हुई अभी, वो आप एंटर कर रहे हो क्या? मतलब अगर सबसे मिस्टीरियस चीज क्या है इस प्लैनेट पे, मतलब हवा और पानी, जलवायु जिसको हम कहते हैं, जलवायु। अब कभी आपने सुना है जलवायु चेंज करो तो इंसान की सेहत में फर्क आ जाता है? जल और वायु, ओके जलवायु, तो ये दोनों कमाल की हैं। इनके ऊपर रिसर्च करते करते मुझे लगता है पता नहीं जिंदगी मेरी पूरी बीत जाएगी, इतनी कमाल की दोनों मिस्टीरियस चीजें हैं, और बहुत ही कमाल की फ्रेंडली चीजें भी हैं। और आपकी मेमोरी पानी से कितना ज्यादा रिलेटेड होती है, आपका बॉडी 72% पानी है, आपका दिमाग 82% पानी है। पानी पानी पानी, जीवनदायक पानी। यदि इस पृथ्वी पे कोई जादू है तो वो पानी में निहित है। कई बार आपको पता होगा चांद पे पानी नहीं मिला, या किसी और प्लैनेट्स पे भी अभी तक तो नहीं मिला इनको पानी। तो पानी अगर पृथ्वी पे है
यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है, याद रखिएगा, बहुत बड़ा हिंट आ रखा है आपके पास, हिंट है ये, हिंट। अगर अगर आप जादू ढूंढने तो आए हो, है ना, एवरीबडी आर यू हियर फॉर जादू? तो यदि इस पृथ्वी पे कोई जादू है तो वो पानी में नहीं होता है, तो यानी वो पानी में है। अब पानी कहाँ कहाँ पे है? आपको लग रहा है पानी आपके ग्लास में है, बॉटल में है, आरओ में है, बाथरूम में है, नलके में है? नहीं मेरी जान, पानी तरबूज में भी है, पानी अंगूर में भी है, पानी तेरे घर की दीवार में भी है, पानी तेरी गाड़ी में भी है। पानी हर जगह है। ध्यान से देखो, आपका घर बिना पानी के नहीं बन सकता था। चिनाई, लेंटर, याद है ना? पीओपी भी घोल रहे हो तो पानी से ही घोल रहे हो, हर चीज में पानी है। अगर आप कांच के गिलास को भी, आपने कभी देखा है कांच का गिलास बनने में पहले मोल्डिंग होती है, फिर पानी के अंदर डाला जाता है, सारी की सारी फैक्ट्रीज में, मतलब किसी ना किसी वे में कहीं ना कहीं पानी निहित है। तो जादू भी नहीं होता है, यानी कि जहां पे भी पानी है, आप बस उसके साथ अपना ग्रेटिट्यूड जोड़ दो, मैजिक जोड़ दो, जादू जोड़ दो, यानी कि थैंक यू जोड़ दो, बस आप जादू की दुनिया में एंटर कर जाओगे। हाँ, पानी जहां दिख रहा है वो तो आपको दिख ही रहा है ना, खाते हुए नहाते हुए जो भी है। परंतु जो नहीं भी दिख रहा, सड़कें बनाने में, आपके कपड़े जो आपने पहने हुए हैं इस समय, चाहे आपने वुलन्स पहने, आप बोलो वुलन्स बनाने में कैसे हुआ होगा? क्यों, शीप ने पानी नहीं पिया होगा, भेड़ ने? हाँ। तो मतलब कि हर जगह पे पानी तो है ही है। एंड दिस इज वेयर द ब्यूटीफुल मिस्टीरियस जर्नी बिगिंस। आगे बढ़ते हैं अभी। लॉरेन एस्ली, मानव विज्ञानी और प्रकृति विज्ञानी लेखिका। भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा? जाहिर है हम इस संसार में रह ही नहीं पाएंगे। हमारा कोई परिजन या मित्र भी यहाँ नहीं रह पाएगा। हमें ये दिन नहीं मिलेगा और आने वाला कल भी नहीं। लेकिन हम इस सुंदर ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं, जीवन को इसकी चुनौतियों और आनंददायी पलों यहाँ के पे ना साथ। बहुत एक मिनट, यहाँ पे बहुत डीप मिस्ट्री है, अपने आप से पढ़ो, साथ 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 पढ़ो, आपको समझ आएगा। भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा? मतलब इंसान तो इंसान, हर जीव जंतु जो भी है, चाहे अगर आपने पहला जीव कौन सा था, मे बी एल्गी, एल्गी कहाँ पे पनपा था? एवरीबडी टेल मी, एल्गी। अगर आप सब, अमीबा, अगर अमीबा भी था, अमीबा कहाँ पे पनपा था सबसे पहले? अमीबा, जो समझदार लोग हैं उनको पता होता है, अमीबा वाज द फर्स्ट, जिसको कहते हैं ना लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि है ना, जो जिससे पूरा जीवन स्टार्ट हुआ होगा। आई डोंट नो द रियल थ्योरी, बट मैंने इतना ही पढ़ा है। तो मतलब वो कहाँ पे पनपा था? तो मतलब भोजन और पानी, खाने पीने के बिना क्या होगा? तुम्हारा क्या, किसी का भी क्या होगा? जाहिर है हम संसार में नहीं रह पाएंगे, ऑब्वियसली, क्योंकि आप नहीं रह पाओगे, क्योंकि आपकी बॉडी बनी ऐसी है कि आपकी बॉडी क्या है, 5 एलिमेंट्स। तो 5 एलिमेंट्स में अगर पृथ्वी आपकी बॉडी में किसी रूप में जा रही है, हाँ, हवा पानी, हवा तो चलो आप सांसों से भी ले रहे हो, तो मतलब पृथ्वी पे क्या क्या इंक्लूडेड है? जैसे पानी मोस्टली पृथ्वी पे ही पाया जाता है ना, तो पृथ्वी पे ही सामान उग रहा है, जो उग रहा है वो भी पृथ्वी पे ही है। आप पृथ्वी पे रह रहे हो, ओके, तो अंडरस्टैंड दैट। तो यहाँ पर 5 एलिमेंट्स में मान लो आकाश चाहे ऊपर है, हाँ, सूरज भी, अग्नि भी, चलो एक मिनट के लिए मान लो, पर पृथ्वी के ऊपर अगर आपको पता हो, वायु भी एक पर्टिकुलर वायुमंडल तक ही इंक्लूडेड है, उसके आगे में आपका एटमॉस्फेरिक वायु भी नहीं है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट, तो मतलब अपने आप समझ लो, अपने आप साइंस डीप है। पर एनीवेज, पृथ्वी पे रह रहे हो, हाँ, पृथ्वी के जीव हो, हाँ, तो भोजन और पानी ही है जो आपको पृथ्वी के साथ मतलब अलाइन कर रहा है। जाहिर है हम इस संसार में नहीं रह पाएंगे, हमारा कोई परिजन या मित्र भी यहाँ नहीं रह पाएगा बिना भोजन पानी के। हमें यह दिन नहीं मिलेगा और आने वाला कल भी नहीं मिलेगा। तो जो आप सपनों की दुनिया में घूम रहे हो ना प्रेजेंट मिलना है ना फ्यूचर मिलना है, कुछ नहीं मिलना, ना प्रेजेंट है ना फ्यूचर है। फ्यूचर कहाँ बनता है? तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी सोच में। तो अभी कहाँ पे हो? प्रेजेंट में। लेकिन हम इस सुंदर ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं, अभी इस मोमेंट पे तो रह रहे हैं ना, और काफी सालों से रहते हुए आए हैं। जीवन को इसकी चुनौतियों और आनंददायक पलों के साथ जी रहे हैं। जो भी हमारी लाइफ में अप डाउन्स आ रहे हैं, अप डाउन्स ना, जैसे कि बहुत कमाल की चीज, धरती को देखो कभी अप डाउन, कभी लहरों को देखो, जैसे कि किसी नदी पर लहरें बह रही हैं, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। उसी तरह से कभी पहाड़ों को देखो, पहाड़ों में कभी वैलीज होती हैं, कभी पहाड़ आते हैं, फिर वैलीज आती है, पहाड़ आते हैं। हर चीज तो तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा है कि अप डाउन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। जीवन को इसकी चुनौतियों और आनंददायी पलों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी को उपहार दिया है। अगर आपको भोजन और पानी मिल रहा है तो ही आप इन अप डाउन को एंजॉय कर पा रहे हो, और अगर आपको भोजन और पानी नहीं मिल रहा तो फिर रह के देख लो 4 दिन, देखा जाएगा उसके बाद। कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना भोजन और पानी के चमत्कार को पहचानने और कृतज्ञ होने का कारण है। और ये हमने इस सदियों से, युगों से कहते आए हैं सब लोग।
कुछ भी खाने और पीने से पहले थैंकफुल होना, और तभी वो भोजन का कोर या गिराई या बाइट अपने मुंह में डालना। अविश्वसनीय बात यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं तो इससे केवल आपके जीवन पे असर नहीं होता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। वाई? बिकॉज एनर्जी ट्रेवल्स। अगर आप, जैसे कई लोग बहुत भयंकर गलती करते हैं, क्या कहीं पे भूखमरी है, कहीं पे सूखा पड़ गया, भूखमरी है, आप चाहते हो वहां पर बढ़े, है ना, खाना भोजन की पर्याप्त मात्रा आ जाएगी, वहां पे बारिश हो जाए, वहां पर पानी आ जाए, कितने लोग चाहते हैं। अगर आप किसी गरीबों के पास भोजन नहीं है तो आपके बोलने से, नेगेटिव होने से उनको भोजन मिल जाएगा। आपके जैसे कई लोग ये ड्रामा कर रहे होते हैं क्या कि अरे देखो अंबानीज ने इतना खर्चा किया पैसों का, वो खाने पीने वैरायटी, या कहीं पर हम लेविश शादियों में जाते हैं, इतना खाना वेस्ट कर दिया, इससे तो अच्छा किसी गरीबों को ही दे देते, क्या ड्रामेबाजी वाली बातें बोल रहे होते हो। अभी भी कंप्लेंट। और अगर आप यही वहां पे जाकर आप एक एक कोर अपने, चाहे वो चॉकलेट फाउंटेन में अपना वो मार्शमेलो डुबो के मुंह में डाला, पर कुछ तो खाया, कुछ तो पिया, और उस समय आपने थैंक यू किया, थैंक यू भगवान मुझे इतना टेस्टी फूड देने के लिए, थैंक यू भगवान इतना टेस्टी जूस पिलाने के लिए, थैंक यू भगवान इतना बढ़िया बटर चिकन खिलाने के लिए। वाओ! आप बटर चिकन के लिए कृतज्ञ हो, आप उस मार्शमेलो के लिए कृतज्ञ हो, आप उस परोंठी के लिए कृतज्ञ हो, आप उस दूध के लिए कृतज्ञ हो। और फॉर्मूला क्या है? द मोर यू आर ग्रेटफुल द मोर इट विल बी गिवन टू यू। और सूक्ष्म स्तर पे कल हमने चैप्टर में पढ़ा ना, सूक्ष्म स्तर पे, ऊर्जा के स्तर पे हम सब कनेक्टेड हैं, सारे के सारे जीव कनेक्टेड हैं आपस में। अगर आप चाहते हो बाकी सब जीवों को भरपूर मात्रा में भोजन मिले, पानी मिले, तो भी कृतज्ञता ही उसकी 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 बेस के अंदर है। और आप कृतज्ञता कर रहे हो और इस धरती के ऊपर, इस प्लानिट के ऊपर भोजन की बहुतायत बढ़ रही है। क्या आप ये कर सकते हो अपने लिए और बाकी जीवों के लिए, बाकी मनुष्यों के लिए? आपके पास तो अबंडेंस आएगी आएगी, पर इस एनर्जी सर्कल में सबके पास अबंडेंस बढ़ती चली जाएगी। आप अगर आज ची ची चौ चू चाचा कर रहे हो या कृतज्ञता ही नहीं कर रहे हो, कई बार कंप्लेंट भी कर देते हो, जैसे कुछ खाने से पहले ये क्या बनाया है, इसमें नमक कम है, इसमें मिर्च कम है, ये कच्चा रह गया, पक्का रह गया, अरे ये क्यों बनाया, ये डिश क्यों बनाई। सब करते हैं, मैं भी करती हूँ, आप भी करते हो। और हमने उस भोजन के लिए नेगेटिविटी खुद ब खुद क्रिएट कर दी। और हम ही हैं जो इस भुखमरी के लिए, सूखे के लिए, हम इस आपदाओं विपदाओं के लिए हम ही जिम्मेवार हैं, क्योंकि हमने ही एनर्जी को नेगेटिव करा। अब हम ही हैं जो एनर्जी को पॉजिटिव भी कर सकते हैं। पलड़ा तो हमें ही झुकाना है ना। इंसानों के पास ही सिर्फ दिमाग है, कुत्ते बिल्ली के पास अभी फिलहाल नहीं है। सिर्फ आप कर सकते हो कृतज्ञता। आप इस पूरी की पूरी दुनिया को उस रोशनी की तरफ, उस अबंडेंस की तरफ, उस कहते हैं ना प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जा सकते हो। कैसे? बाय बीइंग एंड डूइंग। करना क्या है? पढ़े। यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ महसूस करें तो इससे दरअसल उन लोगों को मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं और बहुत अधिक जरूरतमंद हैं। आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन की क्रिया व प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता की क्रिया से समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देगी। यहाँ पर बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है। आकर्षण के नियम क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें न्यूटन ने भी बात करी, क्या? एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया एंड प्रतिक्रिया। ओके, इसको समझने वाली क्या बात है? आपने इस समय खा रहे हो और सोच, मतलब बीइंग एंड डूइंग, गतिविधि में क्या कर रहे हो? खा रहे हो या बना रहे हो, और अंदर से क्या हो? शुक्रगुजार। ओके, अंदर और बाहर की दोनों की मिक्सिंग से ही रिजल्ट आएंगे ना। सकल कृतज्ञता, ये एक वर्ड है जिसको मैं हमेशा कहती हूँ टैटू करा लो। टैटू मतलब कि आप अपने लिए जी रहे हो, अपने लिए फायदा चाहते हो तो भी, ताकि आपको स्पीड में फायदा मिले, और अगर आप दुनिया का भी कोई भला करना चाहते हो तो भी। दोनों ही केसेस में सकल कृतज्ञता इज द फॉर्मूला। इंडिविजुअल ग्रैटिट्यूड करना एक तरह की एनर्जी और स्पीड देता है, पर जब आप मास ग्रैटिट्यूड करते हो, और ये हमारे सब धर्मों में ये पहले से ही सिखाया गया है, मास ग्रैटिट्यूड। जैसे कि अगर कभी आप गुरुद्वारों में जाते हो तो वहां पे लंगर होता है। लंगर में जब हम अब अंदर बना भी रहे होते हैं तो हम साथ साथ में वाहेगुरु वाहेगुरु मतलब थैंक यू, वाहेगुरु मीन्स वाह वाह, मीन्स वाओ, मीन्स ग्रैटिट्यूड। ओके, तो हम कुछ ना कुछ ग्रैटिट्यूड कर रहे होते हैं। जब हम वर्ता भी रहे होते हैं, वर्ताना मीन्स जब बांट भी रहे होते हैं खाने के लिए, तो भी पहले जयकारा लगता है ना, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, तभी लोग खाना शुरू करते हैं उसके बाद। क्यों? सकल कृतज्ञता, कि सब लोग मिलकर थैंक यू करो। ओके, अगर आप कभी भंडारों में जाते हो, माता रानी के भंडारों में जाते हो, भोज में जाते हो, तो वहां पर पर्पस क्या था? ओरिजिनल पर्पस क्या था? जैसे कि सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। अभी लेटेस्ट दिल्ली के अंदर बता रही हूँ, गुरुजी नाम से एक थे, अब नहीं है वो, छतरपुर में थे, और उन्होंने भी इस चीज को समझा।
और उन्होंने अपने आश्रम में भी मतलब जैसे लोगों की सकल सकल मीन सब लोग इकट्ठा बैठ के खाएंगे और सब लोग इकट्ठा ग्रैटिट्यूड करेंगे। या अगर आप घर में भी सत्संग कराते हो, कोई भी शुक्राना वो कराते हैं वो लोग ना, तो आप घर में भी खाओगे तो इकट्ठा बैठ के खाओगे सब लोग, और सब लोग एक एक दाने दाना भी जो थाली में बचा है ना उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड करोगे। और अकेले के लिए नहीं खाना, इकट्ठे होके खाना है, सकल कृतज्ञता। मास ग्रैटिट्यूड कमाल के जादू को कमाल की स्पीड देती है। जैसे कि मास्क अरदास कराना, जब हम अगर आपने मुस्लिम्स में देखा होगा वो मोस्टली जब भी ये नमाज करते हो मास करते हैं, मास मतलब इकट्ठे होके करते हैं। अगर अपने मंदिरों में देखा होगा वहां पर आरती के टाइम पे सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, है ना, शाम में और सुबह आरती के टाइम पे इकट्ठे हो जाते हैं। आपने अगर क्रिश्चियनिटी में भी देखा होगा तो वहां पे भी मास, संडे मासेस, कभी सुना है वर्ड संडे मास? संडे मास का मतलब होता है कि एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन तो हम मास में इकट्ठे होंगे और हम इकट्ठे मिलकर थैंक यू या ग्रैटिट्यूड या प्रेयर्स करेंगे। संडे मास बोलते हैं उसको। मास यानी कि सकल मतलब कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का इकट्ठा होना, ये बहुत जरूरी है। और आप अगर कोई भी सपना पूरा करना चाहते हो, आप खुद से, आई एम नॉट सेइंग कि अकेले करने में बढ़िया है, पर इकट्ठे करने में स्पीड बढ़ जाती है। इसीलिए हम लोग कल कई लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी, वैसे तो हम 12 से 2 में इकट्ठे मिलकर करते हैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस, पर अब हमने उसी में 2-2 घंटे और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि 2-3 दिन में भी सिस्टम बन रहा है, पर हम चाहते हैं कि 12 से 2 में भी करो सकल कृतज्ञता। फिर अगर टाइम निकालो अपने लिए शाम को 4 से 6 में भी करो, उसको संध्या वेला बोलते हैं, ठीक है, जब सूरज डूब रहा होता है, तो 4 से 6 में भी करो सकल कृतज्ञता। और फिर सुबह सूरज उगने से पहले मतलब जिसको हम अमृत वेला बोलते हैं उसमें भी 4 से 6 में करो सकल कृतज्ञता। सब लोग सकल में मतलब क्या होता है कि 4 बंदे भी इकट्ठे हो जाओगे ना तो उसको मासी बोलते हैं, ठीक है, 4-5-6 भी इकट्ठे हो जाओगे। यहाँ पे तो 100-200 भी इकट्ठे हो जाते हैं, तो सोचो कितनी सारी एनर्जी इकट्ठी हो गई है। आप सब मिलकर किसी भी चीज के लिए कृतज्ञता कर रहे हो, आपकी जिंदगियों में तो आना ही आना है चमत्कार। इस धरती पे बाकी लोगों के लिए भी कितना जरूरी है। ओके, तो आकर्षण के नियम के अनुसार और न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता की क्रिया से समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी भी देश में, किसी भी गांव में, किसी भी बीहड़ में क्यों ना बैठा हो, उसको पर्याप्त मात्रा में भोजन और पानी मिलेगा। ओके, एंड दिस इज समथिंग आई थिंक, मैं हमेशा कहती हूँ एक इंसान को गाड़ी मिली, बंगला मिला, पता नहीं, पर उसको रोटी कपड़ा मकान मिलना तो बेसिक था। बेसिक जो भी उसके वाले टाइप में जो भी रोटी कपड़ा मकान, ये तो मिलना ही मिलना। मतलब अगर कोई अभी भी इस धरती के ऊपर भूख से मर गया या ठंड से मर गया क्योंकि उसके सिर पे छत नहीं थी या कपड़े नहीं थे इसलिए वो किसी में मर गया, तो शर्म आनी चाहिए इंसानों को कि हम इंसान होकर के हम इतना नहीं कर पाए कि एटलीस्ट हमारे कोई बेसिक 3 चीजें तो मिलनी जरूरी है। हाँ, उसके बाद जो मिला वो तो आगे की बात है। तो जब हम लोग कोई दान या सेवा पुण्य भी करने का काम कोशिश करते हैं, पहले अंदर से ग्रैटिट्यूड लाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने आज 100 कंबल भी बांट दिए उसका कोई इतना खास इफेक्ट नहीं होगा, पर मैं हर कंबल देते हुए अंदर से कितनी शुक्रगुजार हूं, है ना। मैंने रोटी बांट दी, मैंने जैसे गुरुद्वारे में होता है आपने प्रसादा दे दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु आप प्रसादा देते हुए वाहे गुरु बोलो, उससे फर्क पड़ेगा। क्योंकि वो एक चेन स्टार्ट कर रहा है, वो एक एक सकल कृतज्ञता की चेन चेन रिएक्शन स्टार्ट कर रहा है। तो हर बार जब भी आप रोटी खाते हो, खिलाते हो, आप किसी को देते हो, चाहे किसी भी जीव को भी देते हो, गाय को, हमारे तो हिंदू धर्म में तो बहुत अच्छा सिखाया गया है कि हर बार जब आप भोजन खा रहे हो तो किसी को अपने ग्रेटिट्यूड काइंडनेस से रोटी देना ताकि वो सर्कल चला दे। इसको कहा जाता है फूड सर्कल्स, ठीक है, जैसे मनी सर्कल्स होता है वैसी फूड वाटर सर्कल। जैसे कि प्याऊ बनाने हैं ना, गुरुद्वारों में प्याऊ की स्पेशल सेवा रखी जाती है। मैं गुरुद्वारे की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं ज्यादा जाती हूँ, आप जहां भी जाते होगे वहां पे भी होता ही होगा, है ना। कि मतलब आप प्यासे को पानी पिलाओ। क्यों पानी पिलाओ? पहले धर्मार्थ प्याऊ कितने बनते थे, कितने लोगों को याद है कि मंदिरों के बाहर ऐसी सड़कों पे भी लोग ऐसे घड़े में पानी रख के फ्रेश पानी मतलब लोगों को प्रोवाइड करते थे। प्यासों को पानी पिलाना एक पुण्य का काम माना जाता था। क्यों? क्योंकि आपने किसी को पानी पिलाया और कृतज्ञता के साथ पिलाया, इससे पूरी दुनिया में पानी की आपूर्ति, पीने के पानी की आपूर्ति हमेशा बनी रहेगी। आजकल बॉटल्स में पानी बिकना शुरू हो गया, ना कोई कृतज्ञता लेने में ना देने में। तो फिर क्या हो गया? पहले तो घर में कोई कोई भी आता था सबसे पहले पानी पूछा जाता था, सबसे पहले पानी सर्व किया जाता था कृतज्ञता से। आजकल पानी पिलाने में भी लोगों को तकलीफ होने लग गई है। क्यों? क्योंकि हमने तो सर्कल्स रोक दिए हैं, पानी का सर्कल रोक दिया, भोजन का सर्कल रोक दिया। अब देखो तुम्हें कई बार तो तुम्हारे घर में ही तुम्हारे को लगता होगा कि यार खाना बड़ा महंगा हो गया है या चीजें बहुत मुश्किल हो गई हैं, खाने पीने में इतने खर्चे होने शुरू हो गए हैं। क्यों? ये स्कार्सिटी, ये स्केर्सिटी कहाँ से आई है? हमने तो की है। तो अब ठीक कैसे करना है? कर लो, जो खा रहे हो पी रहे हो, बस अपना खुद से तो सर्कल स्टार्ट करो, पहले आगे बढ़े। इसके अलावा
भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम रखती है। यह आपकी हर प्रिय चीज में अपना सुखद सुनहरा धागा पिरो देगी, जिससे आप प्रेम करते हैं और जिसके आप सपने देख रहे हैं। जो भी आपकी इच्छाएं हैं, सपने हैं, आपके ड्रीम्स हैं, अपने आप वहां पे गोल्डन लाइट आनी शुरू हो जाती है। कैसे? जब आप कुछ भी खाते और पीते हुए, मैं कह रही हूँ, आप पॉपकॉर्न्स खा रहे हो, आप शराब पी रहे हो, आप सिगरेट पी रहे हो, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, आपके मुंह से जो भी अंदर जा रहा है, आपको उस समय ग्रेटफुल होना ही होना है। सारे काम छोड़ दो उस समय। अगर आप कुछ खाने या पीने लग रहे हो, सबसे पहले ग्रैटिट्यूड, उसके बाद जो भी आपने करना होगा। तो और खुश, मतलब अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ करना है जो भी काम करना है वो। आगे। पुराने जमाने में लोग यकीन करते थे कि जब वे अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञतावश प्रार्थना करते थे, तो इससे वह शुद्ध हो जाता था। जब आप क्वांटम फिजिक्स की प्रेक्षक प्रभाव जैसी नवीन अवधारणाओं और खोज को देखते हैं, तो पुराने जमाने के लोग सही साबित हो सकते हैं। वो भी प्रैक्टिसेस थी, एक एक प्रैक्टिस का साइंटिफिक रीजन था। वो यकीन करते थे पोनी और जब आप भोजन और पानी, आप अब देखो आपके घर में पिज्जा आ रहा है, हाँ, या जो भी बिस्कुट आ रहे हैं, मट्ठी आ रही है, जो भी आप खाते हो, पैकेट्स वाला फूड भी खाते हो, ना जाने किसने बनाया। हाँ, क्योंकि पता नहीं ना किस भावना से बनाया। जैसे कि पुराने जमाने में लोगों का स्वास्थ्य क्यों अच्छा रहता था, क्योंकि जो भी गृहिणी या जो भी अंदर खाना बना रहा है, वो बड़ी अच्छी भावना से बना रहा है, बच्चों के लिए प्यार की भावना से बना रहे हैं। अब आजकल आप इरिटेट होके बना रहे हो, खिंच के बना रहे हो, तो इसीलिए तो बीमारियां इतनी बढ़ रही हैं बॉडीज के अंदर। अब नौकर बना रहे हैं, ना जाने, अब जैसे सपोजिंग आजकल, मैं आजकल पिछली बात नहीं करूंगी, मैं जनरल बात कर रही हूँ, ठीक है? कि मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई बहुत ही वायलेंट वाली चीज देख रहे हो टीवी में और खाना खा रहे हो, या आपके नौकर या आपको क्या पता, रेस्टोरेंट में जो बना रहा है वो फोन पे बातें कर रहा हो, फोन पे हेलो जानू क्या हाल है, यू नो, काइंड ऑफ सिडक्टिव बातें जो होती, कई बार नौकरों को मैंने देखा है अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ जानू जानू कर रहे होते हैं, और किचन्स में या कैफेज में या रेस्टोरेंट्स में खाना बना रहे होते हैं। अब आपने वही जो भी भावना थी, भावना क्या थी, कामोत्तेजक भावना कहते हैं इसको, के मतलब कि कामना का, जिसको हम कहते हैं काम वासना वाली भावना। तो जो भी है वो कर रहे हैं, हाँ, और आपने वो खाना खा लिया। अब क्या, आप तो अच्छे खासे शरीफ बंदे थे, क्या हुआ? हो गई ना एनर्जी शिफ्ट अंदर से। अब आपको भी ऐसी बातों के अंदर मजा आने, रस आने लग गया है। क्यों हुआ है ये, क्या हुआ? आप, क्योंकि जो आप खा रहे हो वही तो आपका शरीर, आपकी सोच, आपका दिमाग हर चीज बना रहा है। अच्छी खासी शुद्ध सोच थी, कर ली बर्बाद। चाहे खुद, हो सकता है आपने रोटी खाते खाते व्हाट्सएप पे कोई एवे एवे एरी गरी वीडियो आई है, आपने ही देख ली, आपने खुद ही देखते हुए खा लिया, तो भैया अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। और कई बार अनजाने में दूसरे ने बनाया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सिंपल है, मैं गुरुद्वारे की बात दोबारा से करूँ, क्योंकि मैं गुरुद्वारे में जाती हूँ ज्यादा। तो गुरुद्वारों में जब भी भोजन बन रहा होता है, या तो वो क्या होता है, होती तो रोटियां ही है ना, पर हम रोटी को प्रसाद क्यों बोलते हैं? हम कहते हैं प्रसादा, हाँ, जैसे दाल को दाल नहीं बोलते, हम दाल प्रसादा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो बनाने वाला है, जो पीछे बना रहा है, या जो भी सर्व कर रहा है, उसके मन में भावना है, कृतज्ञता की पॉजिटिव भावना है, इसलिए वो सिंपल रोटी भी प्रसाद बन गई, वो सिंपल हलवा भी प्रसाद बन गया। प्रसाद कैसे बनेगा? जो वहां पे वाणी गूंज रही है, जो गुरबानी है, या मंदिरों में जो मंत्र होते हैं, उसी की वजह से तो वो जो आपके पताशे मिल रहे हैं वो प्रसाद बन जाता है, वरना पताशे तो बाजार से भी खरीद सकते हो। तो प्रसाद क्यों बना? क्योंकि उसमें कुछ मंत्र है, या उसमें कोई ऐसी एनर्जी है जो पॉजिटिव है। तो वो तो आप अपने घर में भी कर सकते हो यार। आप भी तो कर सकते हो, खाना बनाते हुए, खाना खाते हुए, मेक श्योर यू आर ग्रेटफुल, यू आर इन पॉजिटिव एनर्जी। थोड़े दिनों में वही सेम प्रसाद आपके पूरे पूरी बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी ले आएगा। तब देखना आपकी जिंदगी में क्या क्या कमाल के जादू होते हैं। आगे। क्वांटम फिजिक्स में प्रेक्षक प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देती है जिसे देखा जा रहा है। कल्पना करें कि यदि अपने भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से उनकी ऊर्जा संरचना बदल जाती है और वे शुद्ध हो जाते हैं, तो आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाएगी। दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वर फैक्ट। ओके, ऑब्जर्वर फैक्ट मतलब कि अगर आप किसी चीज पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि अगर आप कृतज्ञता करो, एंड में बताएंगे कैसे करना है, ठीक है, तो आपकी वो चीज कैसे अपनी एनर्जी शिफ्ट कर देती है। जिसने बनाया, किस भावना से बनाया, क्या बनाया, फर्क नहीं पड़ता, पर आपने अपने मुंह में डालने से पहले उसकी एनर्जी शिफ्ट करनी है। कैसे करनी है हम आपको एंड में, तब तक अगर कोई ग्लास पानी अगर आपके आसपास है तो एक ग्लास में पानी रख लेना, एंड में करेंगे एक्सपेरिमेंट। आगे।
भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक तरीका सचमुच उस चीज का स्वाद लेना है जिसे आप खा पी रहे हैं। जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाकई स्वाद लेते हैं तो आप दरअसल उनकी कद्र कर रहे हैं या कृतज्ञ हो रहे हैं। प्रयोग के तौर पर अगली बार जब आप कुछ खाएं, पिएं या मुंह में कुछ रखें तो उसे निगलने से पहले अपने मुंह में भोजन या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें। आप पाएंगे कि ऐसा करने पर स्वाद का विस्फोट सा होता है। दूसरी ओर जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। यह एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा ही है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। और आपको आपके स्वाद की ग्रंथियां यानी कि टेस्ट सेंसेस बहुत मेन रीजन से मिली हैं। अभी हम कभी फ्यूचर में किसी एडवांस क्लासेस में बात करेंगे कि जो भी हमारे को सेंसेस मिली है 5, ये बाहर भी काम कर रही हैं और ये अंदर भी काम कर रही हैं। अगर आप भोजन में स्वाद लेना सीख गए तो आप जिंदगी का स्वाद लेना भी धीरे धीरे सीख जाओगे। पर अगर आप भोजन का ही स्वाद नहीं ले रहे, अभी जैसे कि आप, इफ आई आस्क यू कि आपने कल ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, हैं आधे लोगों को पता ही नहीं होता क्या खाया था। कंसंट्रेशन तो क्या बात करूं, अच्छा स्वाद कैसा था, हैं मतलब सामने टीवी चल रहा है, इधर बीवी कुछ कह रही है, इधर बच्चों को ले, कहीं तो ऐसा होता है कॉफी का मग हाथ में उठा के मतलब चल पड़ते हैं और गाड़ी में पी रहे होते हैं। क्या मतलब बॉडी को क्या दे रहे हो, दे क्या रहे हो? मतलब तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम आराम से टेबल पे बैठ के जैसे कि पूजा करते हो वैसे खाना खा पाओ। मतलब कभी कभी इमरजेंसी वाली बात है, बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी वाली बात है तो अलग बात है। पर आजकल क्या कल्चर है, ये वो स्टारबक का कप उठा रखा है, एक हाथ में सैंडविच उठा रखा है, फोन पे बातें कर रहे हैं ब्लूटूथ पे, अपने आपको बड़ा अल्फा मैन, कूल पर्सन, कूल डूड समझ के सड़क पे खाते पीते घूम रही हैं, घूम रहे हैं। क्या कर रहे हो यार, ये पता नहीं क्या बातें कर रहे हो। हाँ, और जो भी आप बातें करते हुए खा रहे हो वो सब आपकी बॉडी में एनर्जी लेके जा रहा है। आप क्लाइंट से बातें कर रहे हो, खिंच रहे हो, बॉस से डांट खा रहे हो और साथ में मुंह में कुछ रखा हुआ है, ले लो। अब पूरी जिंदगी अपने अपने शरीर को इसी एनर्जी के गढ़ में आपने बना दिया। आगे आज कुछ भी खाने पीने से पहले, चाहे आप भोजन करें, फल खाएं या नाश्ता करें या कोई चीज पिएं जिसमें पानी भी शामिल है, एक पल निकाल कर उस चीज को देखें जिसे आप खाने पीने वाले हैं और मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और यदि आप कर सके तो बस एक निवाला ही लें और सचमुच उसका स्वाद लें। इससे न सिर्फ आपका आनंद बढ़ेगा बल्कि आपको कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने में भी मदद मिलेगी। जब वो बिल्कुल फ्रेश फ्रेश परोंठी बनती है गर्मा गर्म, हाँ, और उसके ऊपर आप वो मक्खन काट के डालते हो, धीरे धीरे पिघलना शुरू होता है, छोटे 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 बबल्स की तरह पिघलना शुरू होता है। एंड देन वो गर्मा गर्म परोंठी पे वो ठंडा ठंडा मक्खन डाल के जब आप मुंह में डालते हो, और मुंह में जो कमाल की मतलब कहते हैं ना, क्या संगम होता है वो परोंठी और मक्खन के स्वाद का, आनंद, परम आनंद, क्या स्वाद है। ये वो स्वाद है, ये वो आनंद है जो आपको आपके असली आनंद ब्लिस तक लेके जाएगा। बिकॉज कहते हैं ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। हम लोग पता नहीं कौन सी खुशी को ढूंढते फिर रहे हैं सड़कों के ऊपर, कौन से आनंद को ढूंढते फिर रहे हैं मंदिरों में गुरुद्वारों में जाकर। आनंद स्वाद तो यहाँ से शुरू होता है, अपने भोजन और पानी के साथ। अभी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे एंड में स्वाद के ऊपर, पर अभी तक के लिए समझ आ गया ना, आगे बढ़ते हैं। आप मेरी तकनीक भी आजमा सकते हैं जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। जादुई शब्द कहते वक्त मैं अपनी उंगलियां भोजन या पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ, मानो मैं उन पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। मैं कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल को जिस भी चीज पर छिड़का जाता है वह उसे स्पर्श करके तत्काल शुद्ध कर देती है। मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, इसलिए मैं इसे अपने खाने पीने की हर चीज में मिलाना चाहती हूँ। यदि आप इसे अधिक प्रभावी पाएं तो आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथों में जादुई धूल की एक डिब्बी शेकर है और आप भोजन को खाने या पेय पदार्थ को पीने से पहले उस पर जादुई धूल छिड़क रहे हैं। आपके जैसे टेबल पे पड़ी नहीं होती वो नमक की शेकर, नमक मिर्च जिसमें डली होती है, तो उसी तरह की डिब्बी आप, अब मैं तो कह रही हूँ डिब्बी बना लो, एक डिब्बी जिसका नाम यही होगा कि थैंक यू डिब्बी।
आप वो ना रेस्टोरेंट्स में जा रहे हो या कहीं पे भी जा रहे हो, तो आप ऐसे उंगलियां लहराओगे तो थोड़ा कई बार लग सकता है अजीब सा। तो वो डिब्बी बना लो, वो अच्छी आदत है। मतलब वो अपने टेबल पे भी रखो, अपने जहां पे भी आप खाना खाते हो, या अपने पर्स में भी रख सकते हो। छोटी सी शेकर डिब्बी हल्की सी होती है, उसमें डालना कुछ नहीं है ठीक है, पर लोगों को ये लगेगा आप नमक डाल रहे हो शायद। तो मतलब लोगों को जो मर्जी लगे, पर जब भी आप शेक करोगे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, जिस भी चीज को आप थैंक यू करना चाहते हो, बट एटलीस्ट कुछ भी खाने या पीने से पहले आपने उसके ऊपर अपनी कृतज्ञता का छिड़काव तो किया। दैट्स द मैजिक इंग्रेडिएंट, दैट्स द, जिसको हम कहते हैं ना जादुई तत्व। आगे। यदि दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं, तो जैसे ही याद आए, आंखें बंद करके उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे, जब आपने खाया पिया था। मन ही मन उसके एक दो पल पहले के दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द कहें। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थों के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं, तो इस अभ्यास को कल दोहराएं। आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक दिन की भी चूक नहीं करनी चाहिए। इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है। अगर आप चाहते हो आपके सपने पूरे हों और बहुत स्पीड में पूरे, जैसे आज बेटा जी ने सुबह लिस्ट बनवाई थी आपकी, है ना, खाने पीने की चीजों की लिस्ट बनाई है आपने, तो आपको अपना कंसंट्रेट कर देना चाहिए। देखो, जो अभी खा रहे हो उसके लिए तो करना ही करना है हमारे को ग्रैटिट्यूड, है ना। तो पर जो आपने सुबह खाया भूल गए तो कोई बात नहीं, अभी याद करके उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर लो। अगर कल कुछ खाया था उसको भी थैंक यू करना भूल गए तो अभी कर लो। जैसे कि कल मैंने क्या खाया, मैंने अंगूर खाए थे, और हो सकता है मैंने अंगूर का ग्रैटिट्यूड करना उस समय जल्दी जल्दी बस चलते चलते मतलब टेबल से उठा लिए थे मैंने। तो अब मैं अभी कर सकती हूँ हाथ जोड़ के, थैंक यू अंगूर, मेरी बॉडी में बहुत अच्छा न्यूट्रिशन देने के लिए। बस, या थैंक यू अंगूर भी बोल लोगे तो भी चलो, एटलीस्ट बिगनिंग तो हुई ना। तो मतलब हर चीज के लिए शुक्राना करना, क्यों? क्योंकि आपके सपनों का साकार होना आपके खाने और पीने पे डिपेंड करता है कि आप क्या एनर्जी अपनी बॉडी में डाल रहे हो। वरना आप जितनी मर्जी ये कॉपियां भर लो, जितनी मर्जी अपनी विजुअलाइजेशंस कर लो, पर खाना खाते और पीते हो अगर आप चिक चिक पै पै टू टू टी टी कर रहे हो, बस अधर में ही लटके रहोगे। अधर मीन्स बस समझ गए हो कि मतलब सपनों तक पहुंचना अब एक सपना ही रह जाएगा। अगर ये आज से आपने प्रैक्टिस फास्ट में कर ली, तो बस सपने वो रहे और ये रहे आप में इतनी एनर्जी। खाना पीना क्या देता है आपको? एनर्जी तो देता है। तो और सपनों तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी, है ना। वो रहा सामने सपना, आप में इतनी एनर्जी डाल दो कि आप सपना तक फटाक से पहुंच जाओ। तो बस शुरू करते हैं जीवन में। जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता कृतज्ञता की गहनतम अभिव्यक्तियों में से एक है। और जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस कर सकते हो, तो आप जादू को होते देखेंगे। तो कमाल की स्पीड बढ़ जाती है इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस से। जादुई अभ्यास अब पढ़े। जादुई अभ्यास क्रमांक 8, जादुई तत्व। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल का समय निकाल कर देखें कि आप क्या खाने पीने जा रहे हैं, और उसके लिए मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप चाहें तो अपने भोजन या पेय पदार्थ पर जादुई धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं। नंबर 3, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू मैम। फॉर ऑल योर सपोर्ट। तो फर्स्ट और थर्ड असाइनमेंट तो सेम है जो आप रोज कर रहे हो। आज आपने कुछ भी खाना है, इवन दवाई भी खानी है, मेन बात समझ लो, सिंपल फॉर्मूला, मुंह। आपके इस मुंह से अंदर जो भी जा रहा है, चाहे दवाई जा रही है, चाहे कोई चूरन जा रहा है, कई लोग खाते हैं ना कायम चूर्ण टाइप्स चीजें, जो कुछ भी खा रहे हो आप, कुछ भी पी रहे हो, ये मुंह आपका दरवाजा है। दरवाजा क्या? आपके दिमाग, आपके शरीर तक पहुंचने का दरवाजा है। तो जो भी इसमें से अंदर चीज जा रही है, जैसे कि मैं ना पता नहीं किसको समझा, बच्चों को समझाती हूँ ऐसे अजीब एग्जाम्पल से, कि आपके ऑफिस के अंदर, आपका एक ऑफिस है समझो, हाँ, वहां पे एम्प्लॉयज है अंदर। एम्प्लॉयज होंगे जो भी अभी काम कर रहे होंगे, कोई अच्छे एम्प्लॉय भी होते हैं, कोई थोड़े नखरे वाले एम्प्लॉयज भी होते हैं, थोड़े नेगेटिव एम्प्लॉयज भी होते हैं। अब आपने एक नया एम्प्लॉय हायर किया, बड़ा ही बहुत ही बढ़िया एम्प्लॉय हायर किया आपने, हाँ, और उसने, आपने बिना उसको ट्रेनिंग दिए, बिना उसको कॉन्टेक्ट समझाए पुरानी टीम के साथ बिठा दिया।
अब जो पुरानी टीम है वैसे ही उसी रंग में वो रंग जाएगा फिर, और क्या होगा। पर अगर आपने उसको अंदर, जिसको हम कहते थे ना, अंदर इम्बाइब करने से पहले उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी है कि आप मतलब जो भी ट्रेनिंग देते हैं, हर कंपनी की अपनी अपनी ट्रेनिंग होती है, और आपने बहुत ढंग से ट्रेनिंग दी है, तो वो अंदर जाकर हो सकता है बाकियों को भी सुधार दे, बाकियों को भी आप आपके कॉन्टेक्स्ट में मिलाने की कोशिश करें। तो जो आपका मुंह है ना, ये आपका हायरिंग मतलब अंदर जाने की प्रोसेस है, इनग्रेन इनटेक करने की प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होती है। तो आप जो भी अंदर डाल रहे हो, मतलब आप शरीर के लिए क्या चाहते हो, शरीर में कोई बीमारी है, आपको कोई ब्रेक डाउन है, तो थैंक यू प्यारे प्यारे, जैसे आपने दही खा रहे हो, थैंक यू दही, बहुत मेरे शरीर को स्वास्थ्य देने के लिए, मेरे शरीर में बहुत अच्छे इम्यून सिस्टम बनाने के लिए। शुरू शुरू में तो थैंक यू करो, अभी ज्यादा लालची मत बन जाना, थैंक यू मेरे को 100 करोड़ रुपए लाके देने के लिए, थैंक यू मेरे बहुत सारे पैसे लाके देने के लिए। मतलब मेरे को ये लगता है कि तुम अपने मतलब आपके सपने क्या है वो तो लिखे ही हुए हैं ऑलरेडी आपकी उसके ऊपर, आपकी लिस्ट में है ना। और आपकी लिस्ट किसने लिखी है, आपने तो लिखी है। आप कौन हो, आपका शरीर आपका दिमाग यही तो हो। अभी क्या करना चाहिए, अभी सिर्फ इसको कृतज्ञता से भर दो। जब इसमें इतनी एनर्जी आ जाएगी कृतज्ञता की, तो अपने आप आपके सपनों की तरफ ही आपकी एनर्जी डाइवर्ट कर देगा, है ना। तो अभी हमने क्या करना है, कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल का समय निकालें, और जो भी आप खाने पीने जा रहे हैं उसके लिए मन ही मन में बोलो, नहीं तो जोर की बोलो। कोई मंत्र ढूंढ लो ना अपने लिए, कोई शुक्राने का मंत्र, जैसे कि आई रिमेम्बर सम पीपल डू अरक, भोजन के आसपास अरक करते हुए कुछ वो मंत्र भी बुदबुदाते हैं। पर मंत्र वो होना चाहिए जिसका आपको मतलब ढंग से, जैसे मेरे लिए वाहेगुरु का मतलब मुझे पता है कि मतलब अगर मैं इस समय भूखी हूं तो मेरे लिए नेगेटिविटी है, अगर मेरा पेट भर जाए तो मेरे लिए पॉजिटिविटी है। तो गु मीन्स नेगेटिविटी, रू मीन्स पॉजिटिविटी, तो गुरु, गुरु मीन्स मुझे किसी भी नेगेटिव सिचुएशन से जो पॉजिटिव में ले जाए वो गुरु। सिंपल संस्कृत का यही मतलब है संस्कृत शब्द में। अब मैं जो भी, अगर इस समय मैं भिंडी खा रही हूँ, या मैं इस समय फॉर एग्जांपल सोयाबीन खा रही हूँ, और वो मुझे मेरे को भूखी हालत से तृप्त हालत में लेके जा रहा है, तो वो मेरा गुरु ही तो हुआ इस समय। तो मैं उसको कहूंगी वाहे गुरु, वाहे गुरु, मतलब वाह वाह हे गुरु, वाह हे गुरु, वाहे गुरु। तो ये मेरा वाला स्टाइल है। आप थैंक यू कर सकते हो, शुक्रिया कर सकते हो, शुक्राना कर सकते हो, बट बी थैंकफुल, है ना। आपको वो एनर्जी दे रहा है, आपको लेस ऑफ एनर्जी से मोर ऑफ एनर्जी में लेके जा रहा है। तो हर हर भोजन जो आप खा रहे हो, इवन चिप्स खा रहे हो, पॉपकॉर्न्स खा रहे हो, जो भी खा रहे हो, उसको अमृत बना दो। कई बार हमने गलती की होती है, कितने लोगों ने कभी गलती करी है कि खाना खाते हुए कुछ टीवी देखो, जहाँ पे वापस सामने नागिन बहिन सुहाग, मतलब वो टीवी सीरियल में सास बहू आपस में बिचिंग कर रहे हैं, या कुछ गलत बात बोल रहे हैं, या लड़ाई झगड़ा देख रहे हो, मारकाट देख रहे हो, न्यूज देख, कितने लोग न्यूज देखते हुए आप टीवी देखते हो, और मतलब न्यूज टीवी में देखते हो आप खाना खाते हो। क्या आप खाना खा रहे हो और सामने कुछ ऐसा चल रहा है जो कि पॉजिटिव नहीं है, चुप हो जाओ, या तो टीवी बंद कर लो या अपना मुंह बंद कर लो। एज सिंपल एज, या तो टीवी बंद कर लो या अपना मुंह बंद कर लो, दोनों में से एक चीज बंद कर लो। एक और चीज होती है, जैसे कि कई लोग जब बहुत दुखी होते हैं, बहुत, ये मैं कई बार बार सिखाती हूँ ताकि सब लोगों को इसकी अवेयरनेस रहे, कि जब कोई बहुत दुखी है, जैसे कोई कोई बीमार है, बीमार का तो चलो अलग बात हो गई, कोई बहुत दुखी है, चिंतित है, बहुत गम में है, और या गुस्से में है, तो और हम कहते हैं पानी पी ले, चुप हो जा पानी पी ले। तो अब वो क्या होता है, जो आप गुस्से में पानी पी रहे हो, तो वो गुस्सा अंदर लेके चला गया। तो मेक श्योर जब भी आप, जैसे आपको बहुत गुस्सा आया हो, किसी से लड़ रहे हो, जो भी है, पर पानी पीने वाले हो, पानी पीने के लिए 1 मिनट के लिए ओके थैंक यू पानी, मेरे शरीर को बहुत अच्छे स्वास्थ्य देने के लिए थैंक यू, मेरी प्यास बुझाने लगी, 2 मिनट के लिए पहले थैंक यू कर लो पानी को, थैंक यू करते हो प्योर, अब तेरी हो जो लड़ाई करनी है जाके कर लो अब इसके बाद। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि जो आप हो, पर अपने खाने और पीने के लिए जो भी आप मुंह में अंदर डालने वाले हो, उस समय ग्रेटफुल होना, पॉजिटिव होना, गुड फीलिंग में होना, ये आपके ही सपनों तक पहुंचने के लिए आपको रॉकेट लगाएगा। सो बी वेरी कॉन्शियस, बी वेरी केयरफुल, बी अलर्ट, ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन द जर्नी। आई होप टुडे सेशन वाज ऑफ यूज टू यू। थैंक यू अंजलि। अच्छा, ये हमने कहा था असाइनमेंट करेंगे। एवरीबडी इफ यू हैव वाटर, जो जाना चाहते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन। ठीक है, तो जो रुक रहे हैं, 1 मिनट अपना पानी ले लो। अब एक्सपेरिमेंट क्या है, हम देखेंगे ऑब्जर्वर इफेक्ट। मतलब आप किसी भी चीज पर अगर ध्यान केंद्रित करते हो, चीज को पता चल जाएगा, आप उसको देख रहे हो, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो उसकी थोड़ी रंगत, उसकी थोड़ी संगत, उसका थोड़ा स्वाद, उसकी उसकी इम्पैक्ट बदल जाता है। तो अभी पानी को एक बार नॉर्मल पीना है, नॉर्मल, ओके, जैसे नॉर्मल आप पानी पीते हो, नॉर्मल पी गए, ओके। अब हम पानी को एक घूंट लेंगे और मुंह में होल्ड करेंगे, एवरीबडी मुंह में होल्ड करेंगे, और होल्ड करते हुए बोलेंगे थैंक यू, और देखेंगे स्वाद चेंज हुआ कुछ इसका। नाउ स्लोली स्लोली ड्रिंक इट। आप में से किसी को स्वाद में चेंज फील हुआ कि जब आपने पहले ना फोकस किया था, ना ग्रैटिट्यूड किया था, तब
और जब आपने इस घूंट को मुंह में रखा और आपने थैंक यू किया और फोकस किया, तो थोड़ा स्वाद चेंज हुआ, यानी दिस इज कॉल्ड एनर्जी शिफ्ट। ओके, एनर्जी शिफ्ट होती है। तो आज के बाद हम जब भी कुछ खाएंगे पिएंगे, कोशिश करेंगे कि उस दौरान के अंदर हम सिर्फ ग्रैटिट्यूड के ऊपर ध्यान दें। किसी भी चीज के ग्रैटिट्यूड, आप खाने पीने का तो कर ही सकते हो, आप किसानों का कर सकते हो, ट्रांसपोर्टर्स का कर सकते हो, सब्जी के स्वाद का, आपकी बॉडी में वो क्या बेनिफिट दे रहा है। जैसे कि आपको पता होता है ना, गाजर खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है, दूध पीने से दांत मजबूत होते हैं। तो अगर आप दूध पी रहे हो तो थैंक यू दूध, मेरे दांतों को, मेरी हड्डियों को मजबूत करने के लिए, मुझे कैल्शियम देने के लिए थैंक यू। अगर आपको पता है उस भोजन से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, तो उसी पे ध्यान केंद्रित कर लो। नहीं तो आपकी भूख मिटाने के लिए ध्यान के, एनर्जी मिल रही है तो ये तो बोल ही सकते हो ना, थैंक यू मेरे को बहुत पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए। अब आपने सिर्फ इस पे फोकस करना है, थैंक यू पे। अपने आप आपके सपनों तक एनर्जी डाइवर्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द एक्टिविटी। थैंक यू वेरी मच, सी यू एट 12 o'clock। अभी नहीं, 2-3 दिन में हम रीस्टार्ट कर रहे हैं इस प्रोग्राम को ना, थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर रहे हैं, कुछ इसमें नई चीजें ऐड कर रहे हैं, जितने भी एमएमएम के पार्टिसिपेंट्स हैं। तो 22 तारीख से रीलॉन्च होगा। रीलॉन्च का मतलब होता है कि मुझे अब 3-4 दिन से कराते कराते लग रहा है कि यार अगर कर ही रही है तो मिलियनर टीम को थोड़ा और ज्यादा लग के कराना चाहिए। कुछ नई चीजें ऐड हो रही हैं अभी उसके अंदर। तो हम लोग 22 तारीख से रीलॉन्च करेंगे उसको। तब तक आपकी 12 से 2 महीने क्लास, ठीक है। 22 तारीख से हम लोग इवनिंग 4 to 6 और मॉर्निंग 4 to 6 भी ऐड कर देंगे इसी के अंदर। और आपके लिए बहुत खुशखबरी है जो पुराने वाले हैं, क्यों? क्योंकि आपकी सेशन की शुरुआत हम 22 से ही मानेंगे। अभी तक जो भी मिल रहा है फ्री तो जो भी एमएमएम में है, 22 तारीख से ही प्रोग्राम स्टार्ट होगा। तब तक ये बस आपका प्रोग्राम करी जाओ, प्रैक्टिस करी जाओ तब तक, ठीक है जी। तो ऑल द थैंक यू वेरी मच ऑल द मैजिक प्रैक्टिशनर्स, ऑल द पीपल रियली रियली ट्रांसफॉर्मिंग देयर माइंड टू द मिलियनर माइंडसेट। और खाने पीने की चीजों के लिए खूब शुक्रगुजार होना आपके अबंडेंस माइंडसेट की शुरुआत है, क्योंकि बहुत कुछ खाते पीते हैं हम लोग, है ना। उसी तरह से अपने जीवन को बस ऐसी इसी शुक्राने में बनाए रखो और बस सपनों तक पहुंच जाओ। Thank you very much. Any question before we sign off? Sign off. No, ma'am, no questions. बस प्रैक्टिस शुरू करो, खाओ पियो ऐश करो मित्रों शुक्राने के गुर गाए जाओ, बस यही है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने अपने प्रैक्टिसेस को। सी यू एट 12 o'clock। अभी मैं ही लूंगी सेशन थोड़े दिन, क्योंकि मैं चाहती हूँ एक बार तुम्हारा माइंडसेट पहले अच्छी तरह से इंस्टिल हो जाए। तो आई विल बी देयर विद यू। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू बेटा जी, थैंक यू अंजलि, थैंक यू सुरेता जी, थैंक यू ईच एंड एवरी वॉलंटियर। और जितने लोग एमएमएम में है, प्लीज अपने नाम के आगे मिलियनर जोड़ना, नाम के साथ मिलियनर जोड़ना। आज हमारा असाइनमेंट है ये। खाना पीना तो असाइनमेंट है ही, पर मिलियनर माइंडसेट के साथ खाना पीना शुरू करेंगे। तो कुछ भी अपने नाम में देखो कहाँ आपको सुंदर लग रहा है, मिलियनर को साथ में जोड़कर यू विल बी पुटिंग इन द ग्रुप सो दैट यू आर रेडी विद योर न्यू नेम। इससे करना क्या है वो तो आगे वाले सेशंस में आपको पता चल जाएगा, ठीक है, जो हम एमएमएम में डीप प्रैक्टिस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर योर पार्टिसिपेशन। लव यू ऑल, सी यू अगेन। थैंक यू अंजलि, थैंक यू।